Okay. So in the last lecture, sir, आवाज clear है, कट रही है? नहीं, एकदम clear है. Okay, okay. In the last lecture, we are just discussing about the bones of the forearm and the muscles of the arm. In shortly, I just revised the muscles related with an arm. There are basically three muscles present over there. The first one is the bicep brachii, which is just lies at the superior section when we just dissect a body by taking an incision with an skin. We just expose that muscle, that is the bicep brachii. Then just below the bicep brachii, we have in a brachialis. Then along with the bicep brachii, biceps means they have two head. In along with that short head of bicep brachii, we have another muscle called as coracobrachialis. Okay, and in the posterior compartment, we have only single muscle, that is the tricep brachii, means it has a three head. So these four muscles are generally placed over the region of arm, or they are counted the muscles related with an arm. Before that, we have a scapular region where the prominent muscle is a deltoid muscle, which is up to the half of the. So these four muscles are five muscles are particularly present in the arm. Now, in this session, we are just discussing about the muscles which are present in the forearm, that is in between the elbow joint and the wrist joint, and in a hand. So particularly, there are near 20 muscles related with an forearm, and 20 muscles they are related with an hand. So just we are enlisting the muscles related with an hand because they are not as such as mentioned in any yoga, but these muscles like the present in a forearm, they are just used in a regular practice for the flexion of wrist, elbow, or extension of that particular joint. So just go one by one. First one, we starting with an muscles related with an forearm in the anterior compartment. Now if you consider जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन जो होती है बॉडी की, इट्स पाम्स आर टुवर्ड्स फेसिंग एट द एंटीरियर एस्पेक्ट. तो ये जो पोर्शन हो गया, जो आगे का पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज एन एंटीरियर पोर्शन, एंड द पोस्टीरियर पोर्शन जस्ट लाइज जस्ट बैक ऑफ दैट. The anterior portion or the anterior of the forearm is related with an flexure or flexion of the movement of the joints related with that particular structure. An extensor compartment or the muscles which are responsible for the extension of this particular joint, they are present at the back of the forearm. So collectively they are having the same functions. So it's easy to remember which muscles are going to flex or which muscles are going for the extension. Another similar point is that it's all the flexor muscles are mostly arises with an medial epicondyle of the humerus. Now if you consider if you remember the landmarks related with an forearm, the first particular landmark is related with these bony structures which is present near the elbow joint. It's a medial epicondyle. Okay, यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर प्रोमिनेंटली फील होता है, ये मैंने जब लैंडमार्क भी पढ़ाए थे तब लैंडमार्क बताए थे तब मैंने बताया था कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, दैट इज द medial epicondyle. Just opposite to that here there is a lateral epicondyle. तो सभी फ्लेक्सर मसल्स यहाँ से ओरिजिन होते हैं. इसके नीचे एग्जैक्टली अल्नर नर्व होती है, इसलिए कभी कोहनी आपको कभी दीवार से या कहीं लग गई होंगी तो आपको एक करंट जैसा या झुंझुना जैसा जो महसूस हुआ होगा, दैट्स रिलेटेड विद दिस पोर्शन. एग्जैक्टली नीचे इसके अल्नर नर्व होती है. तो दिस इज द particular first landmark. This is medial epicondyle and this is the lateral epicondyle. Just a tip of an elbow, it's formed by the olecranon process of an ulna. ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था
कि जो सुपीरियर सरफेस होता है वो सबक्यूट होता है, मींस स्किन के नीचे होता है, इसलिए ये भी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पाल्पेट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हम पर्टिकुलरली पाल्पेट कर पाते हैं वो नियर द ब्रिस्ट आपको एक पर्टिकुलरली टेंडन दिखेंगी जो सेंट्रली प्रेजेंट होती है, जिसे हम पैल्मरिस लॉन्गस कहते हैं। पैल्मरिस लॉन्गस इज द मसल रिलेटेड विद द फोरआर्म एंटीरियर कंपार्टमेंट। इसमें बेली बहुत छोटी होती है और टेंडन बहुत बड़ा होता है, सो इट इज कॉल्ड एज पैल्मरिस लॉन्गस। अगेन इट्स गोइंग फॉर द अटैचमेंट विद द पाल्म, सो इट इज अ पैल्मरिस एंड टेंडन इज लॉन्ग, इसलिए उसको पैल्मरिस लॉन्गस कहते हैं। तो ये भी हम यहाँ पे पाल्पेट कर सकते हैं। अगर हमने विस्ट पक्का बंद कर दिया तो यहाँ पे एक 3 टेंडन आपको पाल्पेट होंगे। सबसे पहले जो मिडल में होगा दैट इज द फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस, उसके बाजू में मींस टुवर्ड्स द थंब दैट इज पैल्मरिस लॉन्गस, देन टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर दैट इज पैल्मरिस फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। तो ये तीनों टेंडन यहाँ पे हम पाल्पेट कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट जो है यहाँ पे पाल्पेबल टेंडन ये पीछे के साइड में आता है, जिसे हमने यहाँ पे एपिकोंडाइल और मिडिल और लैटरल एपिकोंडाइल देखा, तो यहाँ पे सेम हेड ऑफ अल्ना होता है एट द लिटिल थंब फिंगर के पास। देन उसके ऊपर थोड़ा सा पोस्टेरो लैटरली पोस्टेरो मेडियली जाओगे तो वहां पे स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है, और यहाँ पे अल्ना भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हमने फुल ये फिक्स फ्लेक्शन हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन में हम अगर पोस्टेरो लैटरली जो स्ट्रक्चर पाल्पेट करते हैं एपिकोंडाइल के ऊपर, तो यहाँ पे हमें हेड ऑफ अल्ना भी हेड ऑफ रेडियस भी पाल्पेट होता है। ठीक है, ये जो पोर्शन है जहाँ पे मैंने अभी फिंगर लगाया, इट्स रिलेटेड विद एन मेडियल एंड लैटरल एपिकोंडाइल, एंड दिस पोर्शन जस्ट below the lateral epicondyle we can just palpate, that is the head of radius. अगेन यहाँ पे कार्पल और मेटाकार्पल कार्पल्स भी पीसीफॉर्म हैमेट भी हम पाल्पेट कर पाते हैं। तो ये बेसिकली प्रेस करने के बाद दिखते हैं, पर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो आपको प्रोमिनेंस दिखेंगे इन अ फोरआर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हेड ऑफ अल्ना, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, देन स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस टुवर्ड्स द थंब। यहाँ पे अगर पाल्पेट करोगे थंब के पास यहाँ पे और एक बोनी स्ट्रक्चर आपको पाल्पेट होगा, दैट इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। तो ये हर प्रोसेस और हर स्ट्रक्चर हमने बोन से रिलेटेड देखे हैं। अगेन क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स फिर से प्रोमिनेंटली दिखते हैं जब हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में रिपीट कर दिए। नाउ जस्ट गोइंग विथ एन मसल अटैचमेंट, देयर आर 20 muscles present in the forearm, out of which 8 are related with an anterior compartment and 12 are related with an posterior compartment. Out of 8, 7 are out of 8, 5 are the superficial one in the anterior compartment and 3 are the deep one. We are just going for the names and where they are just attached. Pronator teres, the first muscle which is just lies in the arm, related with the origin that is medial epicondyle of the humerus. Then flexor carpi radialis. Now in this muscle we have the name, that is the flexion of, means these muscles just act as a flexor, then related with an carpi means carpi and the radius. Okay, so radius is placed towards the thumb, तो ये muscle completely thumb के पास present होती है. Then palmaris longus, ये अभी मैंने बताया इनर साइड में होती है. देन फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, ये एक पिक्चर मैंने यहाँ पे लिया है कि हम बॉडी पे इसको चारों मसल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें. तो सिंपल हाथ एक्सटेंड करने के बाद आपके 4 फिंगर जैसे पिक्चर्स में रखे हैं वहां पे हम रख सकते हैं. और ये जो चारों फिंगर्स की पोजीशंस अभी दिख रही है, ऐसे ही पोजीशंस में ये पूरे मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली फोरआर्म की जो सबसे पहली मसल आपको यहाँ पे लगेंगी. ठीक है, ये जो पोर्शन है, जो बल्कि पोर्शन आपको मिल रहा है, दिस इज ये आपको एंटीरियरली दिख रहा है, पर this muscle is called as an brachioradialis, and basically this muscle is related with an extension compartment, but you can feel this at our lateral aspect. means ये जो पोर्शन है जहाँ पे हमने यहाँ पे कोहनी देखी, वहां पे उसके बाद ये जो बल्कि पोर्शन दिख रहा है, this is related with an brachioradialis, means is attached with the brachium to the radius, but it is the muscles related with an extensor compartment. जब भी फिर भी वो हमें बेसिकली एंटीरियर कंपार्टमेंट में दिखती है. उसको लग के जो मसल होती है, दैट इज द मोस्ट ऑब्लिक मसल प्रेजेंट इन द बॉडी, दैट इज द प्रोनेटर टेरेस, देन फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, देन पाल्मरिस लॉन्गस एंड देन फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस. तो यहाँ पे जो मसल्स होती है 5 मसल्स, इसमें से ये प्रोनेटर टेरेस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मरिस लॉन्गस एंड flexor carpi ulnaris. Out of along with that we have an muscles called as flexor digitorum superficialis. अभी
बाय द नेम डिजिटोरम, दे हैविंग 4 टेंडॉन्स। ये यहाँ पे बीच में हमें प्रोमिनेंटली पाल्पेट होती है, पर ये 4 टेंडॉन से यहाँ पे इंसर्ट होती है। जब मिडल फैलेंजेस में वो इंसर्ट होती है तो वहां पे वो स्प्लिट होती है। उसके बाद वो यहाँ पे दिया है कि इट स्प्लिट्स इनटू द 2 सेगमेंट्स, और वो दोनों साइड में अटैच होती है मिडल फैलेंजेस की, ताकि हम ये जो डिजिट्स के मूवमेंट है, डिजिट्स इन जस्ट थंब को छोड़ दीजिए, सिर्फ डिजिट के मूवमेंट्स, दे आर एसोसिएटेड विद द flexor digitorum superficialis in the superior compartment. Along with they have an another muscle called as flexor profundus in an anterior compartment, जो again 4 muscles फ्लेक्शन डिजिट के फ्लेक्शन के लिए काम में आती है। तो बेसिकली हम जब बॉडी पे देखेंगे तो ये 4 मसल्स ऐसे दिखेंगी। यहाँ पे भी लैंडमार्क्स प्रोमिनेंट दिखते हैं, जैसे पाल्मेरिस लॉन्गस का यहाँ पे थोड़ा सा ये दिख रहा है। ये जो पोर्शन है कर्सल जहाँ पे मेरा है, यहाँ पे जो बल्कि मसल है दैट इज ब्रैकियोरेडियलिस, बट तो बेसिकली ब्रैकियोरेडियलिस, दिस इज ब्रैकियोरेडियलिस एंड दिस इज पाल्मेरिस लॉन्गस। तो ये जो ट्रायंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, क्यूबाइटल, क्यूबिटस इज द ग्रीक नेम रिलेटेड विथ एन एल्बो। तो उसके आगे जो स्ट्रक्चर आता है मींस ये ट्रायंगुलर पोर्शन, दिस इज रिलेटेड विथ एन क्यूबाइटल फोसा। से ये आगे भी आएगा, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। So these are the 5 muscles related with an superficial muscles, that is pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitorum superficialis. Then another, these origin insertions just टेबलर फॉर्म में है इसलिए दिया है, पर इसका हमें इतना काम नहीं आता, सिर्फ मसल्स का नाम भी सफिशिएंट है। देन नर्व सप्लाई, मेडियन नर्व बेसिकली प्रेजेंट होती है एंटीरियर कंपार्टमेंट में एट द मिडल। सो मोस्ट ऑफ द these nerves are supplied by the median nerve। जैसे हमने ऊपर देखा था आर्म में, आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट जो तीनों मसल्स थी दे आर रिलेटेड विथ एन मस्कुलोक्यूटेनस नर्व। देन a posterior compartment that is related with a radial nerve। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी मसल्स दे आर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व, एक्सेप्ट वन दैट इज द फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, इट इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। ठीक है, बाकी सभी मसल्स मीडियन से होती है, सिर्फ एक ही है दैट इज रिलेटेड विथ एन अल्नर साइड, तो वो अल्नर नर्व से सप्लाई कर ये होती है, नरिश होती है। तो ये बेसिकली बॉडी पे जब हम देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज ब्रैकियोरेडियलिस, देन दिस इज द pronator teres marking by the yellow color, then just adjacent to that this is flexor carpi radialis, then palmaris longus, then flexor carpi ulnaris। उसके नीचे एग्जैक्ट यहाँ पे 4 टेंडॉन्स होते हैं, दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। तो दीज आर द 4 मसल्स। यहाँ पे और एक पिक्चर लिखा है मैंने, यहाँ पे दिस इज pronator teres, दिस इज brachioradialis, then this muscle is flexor carpi radialis, just adjacent to that belly यहाँ पे छोटी दिख रही है, this is the tendon। और ये बीच में आपको जो मैं बोला कि यहाँ पे पाल्पेट होती है, तो that is the palmaris longus। then after the palmaris longus flexor carpi ulnaris, उसके नीचे 4 टेंडॉन्स होते हैं। जब इसको हम सेपरेट करते हैं तभी ये 4 टेंडॉन हमें दिखते हैं। then यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये बीच वाला, दैट इज द एपोनेउरोसिस ऑफ द बैसिपिटल ग्रूव। ये भी लास्ट टाइम में मैंने बोला था, जब हम फ्लेक्स करते हैं एल्बो को तो यहाँ पे हमें एक टेंडन पाल्पेट होती है, दैट टेंडन इज एसोसिएटेड विद द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रैकी। मींस अगर सिंपल थंब रख दिया, इसको फ्लेक्स किया, तो एक प्रोमिनेंटली स्ट्रक्चर आपको पाल्पेट होगा वहां पे, जो मूव होता है या मूव होते हुए दिखता है, दैट इज द बाइसेप ब्रैकी, टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रैकी। ठीक है, तो उसी के बाजू में एपोनेउरोसिस होता है, ये बेसिकली सुपरफिशियल होता है, तो ये हम पाल्पेट नहीं कर पाते। लेकिन ये एपोनेउरोसिस के बाजू में आपको छोटा सा एक टेंडन अंदर जाते हुए दिखेगा, ये यहाँ पे पाल्पेट हो रहा है, दैट इज द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रैकी। तो these are the superficial muscles। then the deep muscles basically again they are related with an flexion of this particular compartment। the having first one that is flexor digitorum profundus। अब यहाँ पे again the muscles having the word digits, so ये again 4 टेंडन में यहाँ पे इंसर्ट होती है। और प्रोफंडस यानी बड़ी मसल है एज कम्पेयर इन प्रोफंडा, यानी प्रोफंडस यानी बड़ा। तो यहाँ पे बड़ी मसल होती है इस कंपार्टमेंट में, जो अगेन 4 टेंडन देते हैं डिजिट को। तो सबसे पहले हमने देखा कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के 4 टेंडन डिजिट को जा रहे थे और वो स्प्लिट हो रहे थे एट मिडल फैलेंजेस। तो वो स्प्लिट होते वक्त इसका टेंडन जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है उसके नीचे होती है, उसका टेंडन उस दोनों के बीच में से जाके आगे इंसर्ट होता है। तो ये दोनों मसल्स जो है वो
फ्लेक्शन ऑफ डिजिट्स के काम में आती है। यहाँ पे नीचे एक हाइब्रिड मसल करके लिखा है, तो बेसिकली हर मसल को सिर्फ एक ही नर्व से सप्लाई होता है, लेकिन बॉडी में से कुल 3 मसल्स है जिनको एडिशनल सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई बाय द अनदर। तो अगर जिस मसल को 2 नर्व सप्लाई हुआ है उस मसल को उन्होंने हाइब्रिड कहा है, क्योंकि उनको 2 जगह से सप्लाई आ रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे डिजिटोरम प्रोफंडस को 2 ड्यूअल नर्व सप्लाई होता है। वन इट इज एसोसिएटेड विथ एन अगेन ulnar nerve and another is related with an anterior interosseous nerve. It's the branch of a median nerve. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ये जो देखे हैं मोस्टली दे आर एसोसिएटेड विथ एन मीडियन नर्व, बाकी किसी का भी सप्लाई नहीं है सिर्फ फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस को छोड़ के। नर्व भी यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि हम आगे सीएनएस में भी इसको और फ्लेक्सेस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो ताकि हम वहां पे फिर से रिपीट कर पाए। इसलिए यहाँ पे जो पोर्शन आया इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि वहां पे हम और कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि कौन से मूवमेंट में क्या होता है ये हमें पता नहीं रहता, तो ये नर्व सप्लाई से रिलेटेड भी हो सकता है, तो ये भी पता होना चाहिए। इसलिए तो यहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, देन फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। अभी यहाँ पे फ्लेक्सर अगेन इट इज एसोसिएटेड विद द फ्लेक्शन, पॉलिसिस मींस थंब, और लॉन्गस। अभी तक हमने जो मसल देखी पूरे इसमें जो पाम की तरफ जा रही थी, पर सिर्फ फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस जो थी वो थंब की तरफ गई, और उसके बाद ये मसल है दैट इज फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जो और थंब के पास जाती है। ठीक है, मींस डिजिट की तरफ जाने वाली 4 अलग मसल थी और थंब की तरफ जाने वाली यहाँ पे 4 अलग मसल है एंटीरियर कंपार्टमेंट पे। ठीक है, बेसिकली थंब ये जो है इसमें बहुत सारी मसल सप्लाई है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा अडेप्टेशन हुआ तो पहले जो थे एप्स या मंकीज, इनमें ये जो पोर्शन था थंब का अपोनेंस वगैरह वगैरह, तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती थी। तो यहाँ पे अभी भी थंब को जो मसल सप्लाई होता है वो एज कंपेयर विद अदर डिजिट्स वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, ताकि इसकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो पाए। मीन्स हम कुछ ग्रिप भी करते हैं तो विदाउट थंब हम उसको इमेजिन नहीं कर पाते, उसकी ग्रिप अच्छे से नहीं बन पाती। और यहाँ पे और 2 अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, हाइपोथिनर और थिनर, वो हैंड के वक्त हम देखेंगे। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस अलग, जो डीप कंपार्टमेंट होती है उसका टेंडन भी ठीक रहता है। जब हम डिसेक्शन करके बॉडी में इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली सभी मसल्स को बाजू में करते हैं और उसको पुल करके देखते हैं कि थंब हिल रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेंडन्स है। जैसे हमने देखा कि 8 मसल्स है, तो 8 मसल्स के यानी 6 मसल्स के 6 टेंडन्स और 2 मसल्स ऐसे कि जिनके 4 टेंडन्स होते हैं, तो अलग से 8 टेंडन्स, ऐसे 14 टेंडन्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। पर बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है, ट्रेस आखिरी तक करना पड़ता है कि कौन सा टेंडन किसका है। इसलिए यहाँ पे एक छोटी सी ये है कि हम जब इसको पुल करते हैं तो थंब का मूवमेंट होता है, तो बेसिकली दिस फ्लेक्शन इज एसोसिएटेड विद द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। देन द लास्ट वन दैट इज द प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अभी ये एज पर द नेम प्रोनेटर मींस ये प्रोनेशन सुपिनेशन प्रोनेशन में काम में आएंगी। ये जो मूवमेंट होती है दिस इज द सुपिनेशन, पाम फेसिंग अपवर्ड साइड। देन जस्ट इसको हमने मूव रिमूव ये किया, नीचे किया, दिस इज एसोसिएटेड विथ एन तो दिस इज प्रोनेशन, दिस इज सुपिनेशन। तो ये मूवमेंट मोस्टली काम में आती है और दैट इज एसोसिएटेड दैट इज कॉल्ड एज प्रोनेटर एंड क्वाड्रेटस बिकॉज इट इज इन अ क्वाड्रेंगुलर शेप। तो ये जो मसल होती है जो बॉडी में हमें एज इट इज दिखती है, ये सबसे ऊपर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, देन जस्ट adjacent to that they're having a 4 tendon that is flexor digitorum profundus, and by cutting these 2 muscles we can just find this quadrangular green color muscles mark over here, that is pronator quadratus. So these are the 8 muscles they are present in the forearm, 5 in the superficial compartment, in the deep compartment. Out of 5 there is pronator teres, flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, flexor digitorum superficialis and palmaris longus. In the deep compartment we having pronator quadratus, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, तो ये अगेन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के वक्त काम में आएंगे। अब जैसे भी कोई भी मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे हमने हर एक के ये भी दिए हैं कि एक्शंस वो कैसे करते हैं। तो आप मैक्सिमम देखोगे तो प्रोनेटर टेरेस अगेन बाय द नेम प्रोनेशन, ये सिर्फ प्रोनेशन में आती है, प्रोनेशन ऑफ द फोरआर्म। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस फ्लेक्स एंड अबडक्ट द हैंड्स एट द व्रिस्ट। अब रेडियलिस है, रेडियस तरफ होती है इसलिए वो फ्लेक्शन पे हैंड का और व्रिस्ट का। Then palmaris again flex the wrist, flexor digitorum superficialis, flex the middle phalanges,
associated with the flexion of proximal phalanges with the wrist. Means ये जो पूरा पोर्शन मैंने अभी बताया, that is associated with the flexor digitorum superficialis. Again, flexor carpi ulnaris flex the abductor hand and wrist. So most of these muscles are related with the flexion only. The same over here, that is flexor digitorum profundus, flexion of distal phalanges. After the flexion digitorum superficialis, then secondary it flex the joints of the digits and the fingers. Basically ये जब insert होते हैं tendons, तो इसमें टेंडन इंसर्ट होने का, जैसे एक सिंगल टेंडन है, ये बाकी जगह पे ऐसा इंसर्ट होगा, ठीक है, डायरेक्टली अटैच इंसर्ट होता है, पर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के नीचे यहाँ पे एडिशनल अटैचमेंट्स होते हैं. मींस ये फिंगर को थोड़ा सा तिरछा अटैच होता है, तो इसके बीच में, दोनों के बीच में भी एक छोटी सी लिगामेंट होती है, वेनिकुला ब्रेविस एंड वेनिकुला लॉन्गस करके, जो एडिशनल अटैचमेंट देती है डिजिट्स को, मींस मिडल फैलेंजेस को एंड लोअर फैलेंजेस को. जहाँ पे वो अटैच होती है वहां पे वेनिकुला ब्रेविस होती है, जहां से वो थोड़ा सा दूर आता है तो वहां पे वेनिकुला लॉन्गा होता है. तो ये भी अटैचमेंट और मूवमेंट जो कंप्लीट फिंगर की होती है, इंटर दिस इज फैलेंजेस, और इसके बीच में जो लाइनिंग्स दिखते हैं हमें, दैट इज द इंटरफैलेंजियल जॉइंट. ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होती है फिंगर की या विद इन द फिंगर, अब ये जो छोटा सा मूवमेंट हुआ, अगर मैंने सिर्फ अपर फैलेंजेस को मूव किया है, यहाँ पे मिडल फैलेंजेस को मूव कर रहा है, तो ये भी मूवमेंट जो होती है that is associated with the flexor digitorum profundus. Then flexor pollicis longus flex the distal phalanx of the thumb, continued, then a pronator quadratus, again this is responsible for the pronation. So these are the in superficial compartment. Supplementation of the nerve, that is all are associated with median nerve, just except one, that is flexor carpi ulnaris, that is the radial ulnar one. Deep muscles all are median except flexor digitorum profundus, they are having two nerve supply, ulnar and the median. Then the next portion, that is the big portion, which is the attachment of back of arm, forearm. So this is the back of forearm. Again, अब यहाँ के जैसे medial ये बोला कि सभी फ्लेक्शन करने वाली मसल्स मेडियल इपिकोंडाइल से ओरिजिनेट होती है, तो सेम यहाँ पे है कि जो एक्सटेंशन करती है फोरआर्म का, वो सभी लैटरल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट होती है. और यहाँ पे भी 12 मसल्स है, जिसमें 7 सुपरफिशियल होती है और 5 डीप में होती है. तो आउट ऑफ 7, फर्स्ट वन इज द एंकोनियस. अब यहाँ पे अगेन ये थ्योरेटिकल पोर्शन में चला जाएगा, सिर्फ नाम हम देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मसल्स है जो सभी एक ही फंक्शनिंग करते हैं. तो सबसे पहले एंकोनियस, बाय द नेम एंकोनियस इट इज अ फैन शेप मसल. इसके लिए यहाँ पे दिखती है, दिस इज फैन शेप मसल. ये जो ऊपर का पोर्शन हमें दिख रहा है, दिस इज द ये जो पोर्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है, दिस इज रिलेटेड विथ एन फैन शेप. बेसिकली ये फैन यानी जो चाइनीज या जापानीज पंखे होते हैं कि ट्रायंगुलर होता है और एक जगह पे अटैच होता है, दैट इज एसोसिएटेड विद दैट. तो ये जो होता है दैट इज द एंकोनियस फर्स्ट मसल. ये हम जो ये पोर्शन है, जैसे हमने अल्ना पढ़ा है, अल्ना के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ही वो एंकोनियस प्रेजेंट होती है. देन अब ब्रैकियोरेडियलिस, ये मैंने बताया कि यहाँ पे जो सबसे बल्की मसल आपको दिख रही है, दैट इज द ब्रैकियोरेडियलिस. अभी 2 मसल्स अगेन यहाँ पे कार्पी रेडियलिस मींस थंब की तरफ जाती है, तो यहाँ पे उसके टेंडन के हिसाब से उनको नाम दिया है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस. मींस वो एक्सटेंस कर रही है. कार्पी मींस कार्पल को भी अटैच है और रेडियस को भी अटैच है, और लॉन्गस इज एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टेंडन, और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस मींस अ शॉर्ट टेंडन. तो यहाँ पे नेम भी सेम है, जैसे एंटीरियर कंपार्टमेंट में हमने देखा कि देयर आर टू मसल, दैट इज फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस. तो यहाँ पे सेम है, फ्लेक्सर का एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस. पर जैसा मैंने पहले बताया कि रेडियलिस मींस थंब की तरफ जाने वाली टेंडन्स ज्यादा होती है बॉडी में, इसलिए यहाँ पे भी 2 अलग अलग टेंडन्स या 2 अलग अलग मसल्स होती है रिलेटेड विद एन थंब, that is extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis. Then extensor digitorum. अभी डिजिट्स के तरफ जाने वाली, जैसे हमने आगे की तरफ देखी कि 2 मसल्स थे जिसके 4 टेंडन जाते थे, तो पोस्टीरियरली एक्सटेंशन भी हमें करना है. जैसे अभी मैंने फ्लेक्स कर दिया पूरे डिजिट्स को, अब इसको मुझे एक्सटेंड करना है, मींस ये जो पोर्शन है ये एक्सटेंडेड है.
ठीक है, जो हम नॉर्मली जो पोजीशन में होते हैं, दिस इज द एक्सटेंशन। अब इसको हम फिर से पीछे करेंगे तो दिस इज एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है जिससे पाल्म का हमने देखा, दिस इज द एक्सटेंशन, दिस इज फ्लेक्शन। तो एक्सटेंशन करते वक्त 4 टेंडन यहाँ पे है। अब मोस्ट ऑफ द फंक्शनिंग जो होता है व्रिस्ट का, वहां पे एक्सटेंशन का कुछ काम नहीं है। ठीक है, फ्लेक्शन ही ऑलमोस्ट सभी जगह पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ पे 8 टेंडन है पाल्मर एस्पेक्ट में। दिस इज डोर्सल एस्पेक्ट, दिस इज पाल्मर एस्पेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 8 टेंडन होती है, पर पोस्टेरियरली डिजिट्स को सिर्फ 4 टेंडन जाती है, और उसके बाद सिर्फ 2 डिजिट्स ऐसे है जिसको एडिशनल मसल का सप्लाई होती है। यहाँ पे एक नीचे और एक मसल आपको मिलेगी, दैट इज मिनिमी। एज पर द नेम एक्सटेंड डिजिट मींस डिजिट को जा रही है, और कौन सी डिजिट को, दैट इज द मिनिमी, लिटिल फिंगर को जाती है। ठीक है, तो लिटिल फिंगर का भी यूज एज कंपेयर्ड विद थंब होता है। जैसे हम थंब का मूवमेंट करते हैं, वैसे ही लिटिल फिंगर का मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं इंडेक्स फिंगर से किसी भी अलग अलग बोन को, उंगली को अगर टच करूंगा तो वो डिफिकल्ट जाएगा, तो ये काउंटिंग हम 100% थंब से करते हैं, दिस इज द अपोनेंस। तो ये सेम डिजिट हम लिटिल फिंगर को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी एडिशनल सप्लाई होता है मसल का, दैट इज एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एंड देन लास्ट मसल दैट इज एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये सभी का सप्लाई रेडियल नर्व से हो। तो बेसिकली जो नर्व्स प्रेजेंट है बॉडी में, एंटीरियर कंपार्टमेंट में मिडल में मीडियन नर्व होती है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट दैट सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व, कंप्लीटली रेडियल नर्व होती है। अल्नर साइड में सिर्फ एक ही मसल को अल्ना जाती है, आर्म में एक सभी मसल को मस्कुलोक्यूटेनियस है, पोस्टीरियरली सभी मसल्स को रेडियल नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 मसल हो गए, एंकोनियस, ब्रैकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटम, एक्सटेंसर डिजिटम मिनिमी एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। अब यहाँ पे अगेन अगर आप इसका एक्शन, तो दे आर शोइंग द सेम extension of elbow anconius में, brachioradialis में, flex the forearm at elbow, rotates the forearm in mid prone position and supine mid position। तो यहाँ पे brachioradialis anterior compartment में हमने देखी थी, तो वो flex करते वक्त काम में आती है। फिर भी इसको extension compartment में इसलिए रखा है क्योंकि जो मूवमेंट होती है flexion extension की, इसमें वो दोनों इसमें associated होते हैं। देन बाकी जगह पे as per the name extension and abduct the hand of the wrist, extension abduct the hand of the wrist, then extension of the fingers of the hand। अब यहाँ पे जो हमने बताया कि this flexion and this is the extension, so extensor digitorum extend करेंगे fingers को, then extensor digiti minimi metacarpal और phalangeal joints of little finger को extend करती है। extensor carpi ulnaris that extends the adduct the hand of the wrist, means पूरे extension में wrist के they are associated with this portion only। These are the 7 muscles। then next अभी फिगर में लगभग ऐसी दिखती है, बहुत सी डिफरेंट है बेसिकली बॉडी में, और यहाँ पे इतना काम भी नहीं इसका, सिर्फ जो टेंडन्स आइडेंटिफाई होते हैं पोस्टेरियरली भी, यहाँ पे नंबर ऑफ टेंडन्स आपको दिखेंगे, तो वो बेसिकली दीज आर टेंडन्स एसोसिएटेड विद फ्लेक्सर डिजिटोरम, सॉरी एक्सटेंसर डिजिटोरम। बाकी के टेंडन्स यहाँ पे हम पाल्पेट नहीं कर पाते। एक टेंडन हमने ये देखा था, जैसे रेडियस के वक्त पोस्टेरियरली 4 ग्रूव्स होते हैं और एक ट्यूबरकल होते हैं, कॉल्ड एज अ ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर और डोर्सल ट्यूबरकल। तो यहाँ जो फ्लेक्सर एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन होता है, वो यहाँ से मूव होता है टुवर्ड्स द थंब, ये आगे आउटक्रॉपिंग मसल्स में आएंगी। तो दीज आर द 7 मसल्स। देन 5 मसल्स जो डीप कंपार्टमेंट में होती है, उसमें 2 मसल्स नॉर्मली प्लेस्ड होती है। फर्स्ट वन दैट इज सुपिनेटर, तो ये एग्जैक्टली नीचे होती है, जब हम एंकोनियस को कट करते हैं तो इतने पोर्शन में ही सुपिनेटर होती है। अगेन एज पर द नेम ये सुपिनेशन में ही काम में आएंगी। अब जब आप मूव करते हो सुपिनेशन और प्रोनेशन में, तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली वो स्ट्रक्चर दिखता है। देन अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये छोड़ दीजिए, ये देखते हैं। अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर इंडाइसिस। ठीक है, तो ये जो पहली मसल है दैट इज सुपिनेटर, ये, और लास्ट वाली मसल दैट इज एक्सटेंसर इंडाइसिस, ये बॉडी में स्ट्रेट प्रेजेंट होती है। बाकी के जो तीनों मसल्स है दे आर कॉल्ड एज एन आउटक्रॉपिंग मसल्स। आप ये पिक्चर में अच्छे से इसको देख पाओगे, सभी मसल्स जो है वर्टिकली प्लेस्ड है बॉडी में। ठीक है, सिर्फ ये तीनों मसल्स जो है वो ऑब्लिकली जा रही है, जो बाहर निकल रही है
और दे आर बाहर निकल रही है इन द सेंस ऑफ दे आर थंब की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशनल और 3 मसल का सप्लाई है to the thumb, that is abductor pollicis longus, extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis, ठीक है। अभी ये पूरे नाम के हिसाब से ही है, वो abductor कर रही है, पॉलिस को जा रही है, एक्सटेंसर कर रही है, पॉलिस को जा रही है, बड़ा टेंडन छोटा टेंडन, ठीक है। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए जितने जितने मसल्स पॉलिस को गए मींस एंटीरियर कंपार्टमेंट में 2 थे, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में 3 मसल्स है जो पॉलिसिस की तरफ जा रहे हैं, मींस फोरआर्म से पॉलिस की तरफ जाने वाली 5 टेंडन अलग है, ठीक है। abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis and extensor pollicis longus। तो एक ही थंब को इसकी मूवमेंट इतनी ज्यादा होने के कारण फोरआर्म की तरफ से सिर्फ 5 अलग टेंडन जाती है, और डिजिट को हर डिजिट को एंटीरियरली 2 और पोस्टीरियरली मोस्टली एक, सिर्फ 2 डिजिट छोड़ के, एक एक्सटेंसर इंडाइसिस और एक्सटेंसर डिजिट मिनिमी, ठीक है। तो दीज आर द मसल्स रिलेटेड विथ एन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ एन फोरआर्म। बेसिकली इसलिए मैं फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि सिर्फ नाम फैमिलियर होने चाहिए, जब हम इसको आगे पढ़ेंगे या आगे देखेंगे तो ये पता होना चाहिए कि किस कंपार्टमेंट में आती है, और बाकी नाम के हिसाब से ही उसका फंक्शनिंग और उसके अटैचमेंट्स है। मींस अगर एक्सटेंसर नाम है तो वो एक्सटेंड कर रही है, फ्लेक्शन नाम से स्टार्ट हो रही है तो वो फ्लेक्शन कर रही है। देन जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखता है दैट इज द ब्लड सप्लाई। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली वेन दिया है, दैट इज इसी स्ट्रक्चर में होता है। यहाँ डेल्टॉइड मैंने हमने बताई थी, दिस मसल ऑफ द चेस्ट रीजन दैट इज कॉल्ड एज एन पेक्टोरलिस मेजर। जब हम मूवमेंट करते हैं थंब की, जैसा फ्लेक्शन है तो यहाँ पे हाथ रखिए, ये जो टेंडन मूव हो रहा है देखा पेक्टोरलिस मेजर, और यहाँ पे डेल्टॉइड और पेक्टोरलिस मेजर के बीच में एक छोटी सी गैप होती है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज एन डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव, ठीक है। तो ये जो सिफेलिक वेन है ऊपर की, ये बेसिकली वहां पे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव के कंटेंट में आती है। तो जो लैटरली जो पूरी वेन है दैट इज द सिफेलिक वेन, जो मेडियल साइड में है दैट इज द बेसिलिक वेन, और ये एट द सेंटर इन फ्रंट ऑफ द क्यूबिटस दैट इज इन फ्रंट ऑफ एल्बो, ये एम पैटर्न और वी पैटर्न में फ्यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज एन मेडियल क्यूबाइडल वेन। जब कभी हमने ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लड दिया था तो हम बेसिकली ब्लड यही से निकालते हैं रिलेटेड विथ एन मेडियल क्यूबाइडल वेन, ठीक है। यहाँ पे अलग और क्लिनिकली हम यूज करते हैं, जैसे हम आपने कभी बीपी चेक किया होगा तो स्टेथोस्कोप का एक पार्ट हम ये पोर्शन में रखते हैं क्यूबाइडिस पोर्शन के, तो this is called as a cuboidal triangle। It is basically formed by two muscles, means triangle, a triangular gap होती है बॉडी में प्रेजेंट, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे 4 कंटेंट्स होते हैं, आगे वो है दे आर रिलेटेड विथ मेडियन क्यूबाइडल वेन एट द सुपरफिशियल वन, जहाँ से हम वेनस ड्रेनेज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेडियल क्यूबाइडल वेन। देन अगेन यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती है वेन की। एक्सिला करके एक पोर्शन है, जो ये आर्मपिट होता है, ये एक्सिला करके पोर्शन है, यहाँ पे सभी नर्व्स कलेक्टिवली प्रेजेंट होती है। देन वहां पे एक्सिलरी आर्टरी ब्रैकियल आर्टरी में कन्वर्ट मींस प्रोग्रेस होती है। एक्सिलरी आर्टरी की वहां पे 6 ब्रांचेस होती है। ब्रैकियल आर्टरी यहाँ का जो पोर्शन है उसको सभी को ब्रैकियल आर्टरी सप्लाई करती है। देन ये जो क्यूबाइडल ट्रायंगल मैंने बताया उसके अपेक्स पे ब्रैकियल आर्टरी डिवाइड होती है 2 सेगमेंट में, दैट इज द रेडियल आर्टरी एंड द अल्नर आर्टरी, ठीक है। आउट ऑफ विच रेडियल आर्टरी हम जब यहाँ पे पल्स काउंट करते हैं, कभी आप हॉस्पिटल में गए होंगे या आप खुद इसको काउंट करके देख सकते हैं, थंब के साइड में जब है हम यहाँ पे हमें जो पल्स दिखती है दे आर रिलेटेड विथ एन रेडियल आर्टरी, ठीक है। लोअर एंड के एंटीरियर एस्पेक्ट में हम पाल्पेट कर सकते हैं क्योंकि वो स्मूथ है, वहां पे एक ही कंटेंट है दैट इज द रेडियल आर्टरी। अब इसके इनके भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जो हर जगह पे हम पाल्पेट कर सकते हैं, जैसे एक स्ट्रक्चर पोस्टीरियरली जाता है और बाकी पूरे मसल्स को वो सप्लाई करता है। तो दिस इज मेडियल एपिकोंडाइल, प्रोनेटर टेरेस, एंटीरियर कंपार्टमेंट, ये बताया मैंने फिगर्स, ये हो गया। दिस इज द आर्टेरियल सप्लाई, ये सबक्लेवियन आर्टरी सबसे ऊपर होती है, देन जस्ट स्टार्ट विथ एन एक्सिलरी आर्टरी, देन ब्रैकियल आर्टरी, देन अल्नर एंड रेडियल आर्टरी, देन सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर ब्रांचेस, दे आर आर्च फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए लास्ट में सर्कुलर स्ट्रक्चर है, वेन में भी सेम स्ट्रक्चर है, ये वेन, ये यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है वेनस का, आर्च फॉर्म करता है, दिस इज पाल्मर आर्च। अब बेसिकली इसी के ऊपर पाल्मर एपोनोरिसिस है, जो पाल्मरिस लॉन्गस है वो इंसर्ट करते वक्त पाल्मर एपोनोरिसिस में इंसर्ट होती है। अगर आप मिडल को यहाँ पे अगर थंब रखोगे, ठीक है, जिस किसी को अगर पल्सेशन फील हो रहे हैं
बहुत लोगों को नहीं, मतलब मैक्सिमम लोगों को नहीं होते, एक आउट ऑफ 100 3 या 4 लोगों को यहाँ पे पल्सेशन फील हो सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पल्सेशन फील हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बॉडी में पाल्मेरिस लॉन्गस अब्सेंट है। ठीक है, बेसिकली एडेप्टेशन की वजह से बहुत सारी मसल्स ऐसी होती है कि हर बॉडी में होंगी ही, ऐसा जरूरी नहीं। आउट ऑफ विच ये एक मसल है, दैट इज पाल्मेरिस लॉन्गस। बेली छोटी है, टेंडन बड़ा है, क्योंकि हम उतना यूज नहीं करते हैंड का जितना लोअर एनिमल्स में यूज होता था, एप्स में या मंकी में। तो कुछ मसल्स में चेंजेस आए, उसमें ये एक मसल है कि जहां अगर आपको यहाँ पे पाल्पेशन लग रहा है तो ठीक है, मुझे नहीं लगता, पर बहुत सारी बॉडीज मैंने डिसेक्ट की है जिसमें पाल्मेरिस लॉन्गस एब्सेंट होती है। तो ये एक क्लिनिकली पोर्शन है कि हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और आपको ये अगर लग रहा है तो पाल्मेरिस अपोनेरोसिस एब्सेंट है। अब बेसिकली अगर ये एब्सेंट हुआ तो यहाँ पे अगर इंजरी आपके इसमें हुई तो यहाँ पे ब्लड लॉस सबसे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो तल मर्म पॉइंट करके एक आयुर्वेद में अलग से मर्म का एक पोर्शन दिया है। तो इसमें यहाँ पे तल हृदय मीन्स तल के हृदय में एग्जैक्ट मिड पॉइंट में, ठीक है, तो यहाँ पे तल हृदय मर्म होता है, तो वहां पे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, ऐसा सुश्रुत ने भी कहा है। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो टिप ऑफ मिडल फिंगर है, मीन्स उन्होंने सुश्रुत ने सीधा मध्यमा अंगुली अनुपूर्वेन तलस्य मध्य ऐसा कहा है कि मध्यमा अंगुली अनुपूर्वेन, मध्यमा अंगुली के सीधा मिड ऑफ द पाल्म, यहाँ पे तल हृदय मर्म होता है। तो अगर ये आपको अगर पाल्पेशन दिख रहा है तो थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों वेन्स और आर्टरी दोनों का सप्लाई यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अगर ऐसे वक्त हम कुछ आसन कर रहे हैं, आपको ये अगर पता है कि हमारी यहाँ पे डेलिकेट स्ट्रक्चर है तो इसको भी हमें प्रिजर्व करना चाहिए, उस हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए। देन द नेक्स्ट एक्सिला, दिस इज द आर्मपिट, दिस इज द एक्सिला। आर्मपिट में भी एंटेरियर ली मसल कंपार्टमेंट आते हैं, पोस्टेरियरली मसल कंपार्टमेंट आते हैं। अगर आप आर्मपिट का स्ट्रक्चर देखोगे, इट इज समवॉट पोर्शन दिख रहा है, ये समवॉट डायमंड होते हैं, उसके फुट होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, उसमें भी नंबर ऑफ मसल्स होते हैं। तो वेंट्रल मींस एंटीरियरली पेट्रोलिस मसल्स होते हैं, दैट इज द मेजर एंड द माइनर। डॉर्सल मीन पोस्टीरियर साइड में लैटिसमस डॉर्सी टेरेस माइनर होती है, ये हमने स्कैपुला के देखा था, ये दोनों मसल्स लैटिसमस डॉर्सी और टेरेस माइनर। मेडियल साइड मींस इनर साइड में सेरेटिस एंटीरियर, वेंट्रलिस मींस सेरेटिस एंटीरियर, ये मीडियल साइड में होती है। मींस ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन दिख रहे हैं, ये पोर्शन है, तो यहाँ पे पोस्टीरियर पोर्शन ये हो गया, दैट इज द लैटिसमस डॉर्सी। एंटीरियर ये हो गया, यहाँ पे फोल्ड्स है, मस्कुलर फोल्ड, दिस इज पेक्टोरलिस मेजर। then this one is the medial region, that is the serratus anterior। and जब हम हाथ बंद करते हैं यहाँ पे lateral portion है, that is the orbital groove of humerus। तो यहाँ पे basically humerus का upper end होता है, medially serratus anterior होता है। contents main contents है axillary vein, axillary nerve and axillary artery। तो बेसिकली एक्सिलरी जो नर्व होती है वो पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस होता है। तो ब्रैकियल प्लेक्सस के पूरे कंटेंट्स आप हमें उसी जगह पे मिलते हैं। तो ये भी मोस्ट प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है। जैसे आपने कभी बॉडी में देखा होगा कि आप अगर अपर लिम्ब को कहीं पे मार लग जाएंगी तो यहाँ पे छोटी सी गठान आ सकती है, दैट इज रिलेटेड विथ एन लिम्फ नोड। यहाँ पे 5 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड भी होते हैं। लिम्फ नोड दे आर पर्टिकुलरली विथ जो कोई इन्फ्लामेशन या कुछ इन्फेक्शन बॉडी में हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए बॉडी का इनबिल्ट स्ट्रक्चर है, दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो वो सबसे पहले उसको अटैक करता है अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में एंटर होगी, जैसे कोई इन्फ्लामेशन मींस कहीं पे मार लग गया और वहां पे हमने ट्रीटमेंट नहीं की और वो स्वेलिंग हो रहा है, तो वो उसी पोर्शन के लिम्फ नोड वहां पे ज्यादा सीक्रेट होंगे, लिम्फोसाइट्स टी और बी सेल्स फिजियोलॉजिकल पोर्शन में आता है, तो उस कारण उसका फंक्शनिंग ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे वो लिम्फ नोड्स बड़े हो जाते हैं। बहुत बार ये अपने हाथ में भी आता है, कभी अगर बहुत दिनों से सर्दी या खांसी या टॉन्सिलाइटिस है तो ये कान के पीछे भी लिम्फ नोड्स मोस्टली पाल्पेट होते हैं। जैसे हम कभी ये गए हमें टॉन्सिलाइटिस फ्रिक्वेंटली हुआ तो टॉन्सिलाइटिस इस पोजीशन में चेक करते हैं डॉक्टर, और इस पोजीशन में लिम्फ नोड चेक करते हैं कानों के नीचे। ठीक है, सेम थाई रीजन में होता है जहाँ पे इंग्वानल लिगामेंट होती है, मींस प्यूबिक ट्यूबरकल के बाजू में या एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन के नीचे, वहां पे भी लिम्फ नोड्स हम पाल्पेट कर सकते हैं अगर लोअर लिम्फ को हमें कहीं पे लगा होगा। तो बेसिकली ये उसी लिए इम्पोर्टेंट है फॉर द related with an lymph nodes। Then next portion, that is cuboidal triangle,
ये यहाँ पे पर्टिकुलरली ट्रायंगल निकाल के मैंने बताया है, दिस इज द बाइसेप ब्रैका, दिस इज ब्रैकियोरेडियलिस, और यहाँ पे एक ऑब्लिकली मसल प्लेस है, दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज द प्रोनेटर टेरिस। अब उसके बीच में यहाँ पे इमेजिनरी ट्रायंगल बनता है, और यहाँ पे इमेजिनरी ट्रायंगल बनने के बाद ये चार स्ट्रक्चर, दैट इज मीडियन क्यूबाइडल वेन, ब्रैकियल आर्टरी, मीडियन नर्व एंड द रेडियल नर्व, ये प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हमें उस पोजीशन में थोड़ा सा बचना चाहिए, हम जिस जब इससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज करते हैं। अगेन यहाँ पे टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रैका होता है, जो मैंने बहुत बार फ्लेक्स करके आपको दिखाया है, ठीक है। बाउंड्रीज प्रोनेटर्स ये छोड़ दीजिए। देन दिस इज एपोनेउरोसिस, ये कुछ ऐसा लगता है, दैट इज ब्रैकियोरेडियलिस, और ये प्रोनेटर टेरिस, और ये छोटा सा ट्रायंगल होता है, ठीक है। द लास्ट स्ट्रक्चर जो फोरआर्म में प्रेजेंट है, दैट विथ, सॉरी ये हैंड में है, पर ये भी हमने इसमें देखा था, फर्स्ट वन द कार्पल टनल। अब यहाँ पे जो फ्लेक्सर मसल्स है, टेंडॉन्स है यहाँ पे ऊपर में, ठीक है। तो इसको एक जगह पे बांध के रखने के लिए यहाँ पे एक अलग सा रेटिनाकुलम का स्ट्रक्चर होता है, मींस एक स्ट्रक्चर है सुपरफिशियल फेशिया का, जहाँ पे अगेन फेशिया टाइप ही स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, दोनों साइड में अटैच होता है रेडियस टू अल्ना, और उस कारण वो जो स्ट्रक्चर्स उसके नीचे है वो एक सीक्वेंस से ही होते हैं, वो मूव नहीं हो पाते क्योंकि उसके बीच में सेप्टा होते हैं, मींस उसके बीच में पार्टीशंस होते हैं, वो उस कारण अलग से मूव नहीं हो पाते। यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है, पोस्टीरियरली सेम टेंडन को एक जगह पे रखने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम होता है, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम में मैंने एक बताया था कि आप जब एक्सटेंड करोगे थंब को, तो यहाँ पे एक छोटी सी गैप आपको दिखेंगी, दैट इज कॉल्ड एज एन एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे पाल्पेट करते वक्त ये जो थंब है, थंब का पोर्शन है, इसको एक्सटेंड कीजिए। अब बेसिकली मेरे इसमें नहीं दिखता, ये जो थिन पर्सन होते हैं वहां पे दिखता है। यहाँ पे एक टेंडन आपको ये दिख रहा है, जो प्रोमिनेंट दिख रहा है, उसके बाजू में यहाँ पे एक डिफिनेशन होता है, उसको एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, दैट इज रिलेटेड विद एन अगेन लैंडमार्क, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, और वो अबडक्टेड और एक्सटेंडेड थंब में हमें दिखता है, ठीक है। बेसिकली स्नब बॉक्स इसलिए कहा गया है, ये लास्ट टाइम में शायद मैंने बताया था। यहाँ पे ऐसा होता था कि जो ड्रग एडिक्ट रहते तो यहाँ पे छोटा सा फोसा होता है, वहां पे ड्रग लग के वो इनहेल करते हैं। तो बहुत बार ये फॉरेंसिक मेडिसिन के वक्त हम देख सकते हैं कि कोई अगर ड्रग लेने वाला होगा, तो बेसिकली जब पुलिस पकड़ते हैं तो ये सुन के देखते हैं कि वहां पे कुछ स्मेल आ रहा है क्या। तो दिस इज द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स प्रेजेंट इन द बॉडी। देन मसल्स ऑफ द हैंड, अब ये ज्यादा काम के नहीं है, इसलिए सिर्फ इसको मैंने एनलिस्ट किया है। जो रीजन को जो बोलते हैं, जैसे मसल्स ऑफ द थिनर मीन्स ये जो पोर्शन है थंब से रिलेटेड, यहाँ पे बल्ज जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एन थिनर। जस्ट अपोजिट टू दैट दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एन हाइपोथिनर, ठीक है। दिस इज थिनर, दिस इज हाइपोथिनर। अब यहाँ पे फिर से नंबर ऑफ मसल्स है, अभी इतने ही पोर्शन में 20 मसल्स है, यहाँ पे 20 मसल थे, इतने पोर्शन में 20 मसल है। तो यहाँ पे थंब के तरफ और एडिशनल 3 सप्लाई कर रहे हैं, एज पर द नेम एडेक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, और मसल्स आपको हाइपोथिनर में दिखेंगे। अब डिजिटी मिनिमी, सिर्फ पॉलिस की जगह पे यहाँ पे डिजिटी आया है, बाकी फंक्शनिंग सेम है। लिटिल फिंगर का और थंब का फंक्शनिंग सेम होने के कारण यहाँ पे मसल्स भी ऑलमोस्ट सेम है। अबडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, यहाँ पे देखिए अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, अबडक्टर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, अपोनेंस पॉलिसिस, अपोनेंस डिजिटी मिनिमी। तो ये तीनों मसल्स हाइपोथिनर और हाइपोथिनर में सेम होती है। उसके अलावा एक एडिशनल मसल होती है, दैट इज पैल्मेरिस ब्रेविस। पैल्मेरिस लॉन्गस हमने देखी, जो हैंड में थी, छोटी सी बेली लॉन्ग टेंडन, और एपोनेरिस में इंसर्ट होती थी। ये जो पैल्मेरिस अपोनेरिस था वो उसी से रिलेटेड था। तो यहाँ पे और एक मसल्स लिटिल फिंगर को जाती है, दैट इज पैल्मेरिस ब्रेविस। पर थंब में अलग एक मसल होती है, दैट इज फॉर द अडक्टर ऑफ द थंब, दैट इज अडक्टर पॉलिसिस। अब बेसिकली बहुत सारे सेम नाम हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ मैंने एनलिस्टिंग किया, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पर पता होनी चाहिए कि कौन से रीजन में। देन 4 ल्यूम्ब्रिकल्स है। अब ये छोटे से थ्रेड लाइक मसल्स होती है जो पाल्म में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द लुम्ब्रिकल्स। एंड 4 पाल्मर इंट्रोशियस एंड 4 डॉर्सल इंट्रोशियस। दिस वन इंट्रोशियस। अब पाल्मर एस्पेक्ट में जो 4 इंट्रोशियस प्रेजेंट होती है, दैट इज पाल्मर इंट्रोशियस। यहाँ पे जो
प्रॉक्सिमल फैलेंजेस है वहां पे अटैच होती है, डॉर्सल इंट्रोशियस डॉर्सल साइड में होती है, तो दे आर फोरिन नंबर्स। तो ऐसे 20 मसल्स हैंड में होते हैं, सिर्फ नाम पता होने के लिए मैंने वहां पे लिस्ट किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मसल्स विच आर रिलेटेड विथ एन फोर आर्म। 4 आर्म में, 20 फोर आर्म में और 20 हैंड में। तो जब हम मूवमेंट्स देखेंगे, जैसे हमने बहुत सारी मूवमेंट्स यहाँ पे देखी थी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही है। तो जब जॉइंट्स के भी मूवमेंट देखते हैं रिलेटेड विथ एन एल्बो एंड व्रिस्ट, दे आर पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद दिस मसल्स ओनली। शोल्डर जॉइंट के जो मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, मेडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन और सर्कमडक्शन, शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट में जो चेस्ट रीजन होता है, चेस्ट रीजन के मसल्स मोस्टली यूज्ड होते हैं। तो ये नंबर ऑफ मसल्स हमने देखे वो उस वक्त ये इन्वॉल्व होते हैं। तो शोल्डर जॉइंट अपर से रिलेटेड है, लेकिन उसके मसल्स अटैचमेंट्स के मूवमेंट्स दे आर रिलेटेड विद एन पेक्टोरल गर्डर और द बैक ऑफ द मसल। आर्म और एल्बो दे आर रिलेटेड विद द मसल्स ऑफ द आर्म। wrist they are related with the muscles of the forearm। ठीक है, तो ये मसल्स फिर से रिपीट होंगे जब मूवमेंट्स देखेंगे, फिर से नाम हमें फिर से। तो दिस इज ऑल अबाउट द मसल्स रिलेटेड विद एन forearm। Okay, this is the complete anatomical structures of the bones and the muscles and the landmarks related with an forearm. Now we have a time, so we are just moving for the another structure related with an upper limb. It is just a side of our जो हमने जो सिलेबस दिया था उसके थोड़ा सा अलग, क्योंकि ये पोर्शन उतने में खत्म हो गया। तो मैं वो कंटिन्यू करूं सर, हमारे पास बहुत टाइम है बचा हुआ। जी हेलो, आप जरूर कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, हाँ सर, क्योंकि एज सच रिसर्च मैंने इस पे देखा, तो ये हम अलग सेक्शन में, क्योंकि हम मसल्स और ये कंप्लीट करने के बाद अगर कुछ मुझे और मिला तो हम एक लेक्चर उसमें ले सकते हैं, ये टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट ये कंटिन्यू करता हूँ। दैट इज द बोन ऑफ एन लोअर लिम्ब, वी हैविंग मोस्टली hip bone that is forming the pelvic cavity। जो pelvic cavity form होती है, it is associated with the hip bone of the both side along with the sacrum at the posterior। just नीचे उसके coccyx होता है और hip bone, then thigh में एक bone है that is the femur, और leg में दो bone होते हैं that is the tibia and the fibula। जैसे हमने अपर आर्म में देखा था, एडिशनल बोन देखा था हमने स्कैपुलर कैविटी में, दैट इज द क्लेविकल। तो वैसे यहाँ पे कोई भी बोन नहीं होता। क्लेविकल के फंक्शन में हमने देखा था कि इट्स ट्रांसमिट द वेट ऑफ द अपर लिम्ब टू द स्टर्नम। ठीक है, तो यहाँ पे हिप बोन ही सबसे बड़ा बोन है दैट इज एसोसिएटेड विद द वॉकिंग एंड ऑल। जो सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है बॉडी में, दैट इज द फीमर, जो थाई बोन होता है। ठीक है, थाई में भी एक ही बोन है, यहाँ पे आर्म में भी एक ही बोन था। लेग में दो बोन है, जैसे हमने फोर आर्म में देखे थे, तो लेग में टिबिया और फिब्यूला है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली फोर आर्म में दोनों बोन्स जो है वो फंक्शनिंग में है। दोनों बोन्स बड़े होते हैं, लेकिन जब लेग की तरफ जाते हैं तो फिब्यूला ये जो बोन है ये बहुत छोटा बोन है एज कम्पेयर विद द टिबिया। जो हम अगर पैर को हाथ लगा के मेडियल साइड में यानी थम्स के साइड में अगर कुछ पाल्पेट करके देखेंगे, तो जो हार्ट स्ट्रक्चर आपको लग रहा है दैट इज एसोसिएटेड ओनली। ठीक है, फिब्यूला हमें पाल्पेट भी नहीं होता। फिब्यूला जो होता है मोस्टली इट इज कॉल्ड एज एन स्टेबलाइजिंग बोन। जब कभी बोन ग्राफ्टिंग की बात आती है तो फिब्यूला मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है। देन बोन ग्राफ्टिंग मींस अगर कोई फ्रैक्चर हो गया और उसमें पूरे क्रिस्टल्स अगर फॉर्म बोन के हो गए और हमें बोन की जरूरत है, तो दो जगह से हम निकालते हैं बेसिकली, इलियक क्रेस्ट और फिब्यूला। और सबसे जो असेसेबल होता है दैट इज द रिलेटेड विथ एन इलियक क्रेस्ट, वो अभी हम स्टार्टिंग में देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बोन ऑफ एन लोअर लिम्ब दैट इज अ हिप बोन। ये कुछ ऐसा दिखता है जैसे मैंने पिक्चर में बोला है, दिस इज द हिप बोन। ओके, अब जो हमने लॉन्ग बोन्स के स्ट्रक्चर देखे थे वो इजी है, अपर एंड, लोअर एंड और शाफ्ट। स्कैपुला समवॉट डिफरेंट था, तो बेसिकली स्कैपुला भी रेगुलर बोन में आता है और फ्लैट बोन में आता है, लेकिन अगर ये बोन आप देखोगे तो इसमें कोई भी शेप आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, सो इसको इरेगुलर टाइप ऑफ बोन बोला है। ठीक है, और यहाँ पे फिगर में ही आपको दिख रहा है कि इसमें तीन पार्ट्स है एनाटॉमिकली। फर्स्ट वन जो पिंक कलर में दिख रहा है दैट इज द इलियम, जो येलो कलर में दिख रहा है दैट इज प्यूबिस, एंड जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है दैट इज इस्चियम। ओके,
तो इलियम अपर मोस्ट पोर्शन, प्यूबिस एंड द इस्चियम। तो बेसिकली हम जहाँ पे बैठते हैं, अगर आप ग्लूटेल रीजन में पाल्पेट करके देखोगे, हम जहाँ पे बैठते हैं वहां पे आपको एक ट्यूबरकल या बोनी स्ट्रक्चर ऑफ बोन मिलेगा। जो थीन पर्सन है उसमें उनमें ये इजीली पाल्पेट होता है। तो दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज एन इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, होता है। तो हम जहाँ पे बैठ मींस जो पोस्टेरियरली आता है इज द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। एंटीरियरली आप जस्ट एब्डोमेन के नीचे जहाँ पे हम बेल्ट पहनते हैं, ठीक है, बेल्ट पहनते हैं वहां पे हमें लैटरली पॉइंट फील होता है। ये मैंने एनाटॉमिकल लैंडमार्क के वक्त भी बताया था। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एंटेरो सुपीरियर इलेक्स स्पाइन। ठीक है, वो लैटरली हो गया। फिर मीडियली आए मींस अम्बिलिकस से थोड़ा सा नीचे आइए स्ट्रेट, वहां पे आपको एक बोनी स्ट्रक्चर दिखेगा। अम्बिलिकस से नीचे स्ट्रेट अगर आए तो वहां पे जो बोनी स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज एन प्यूबिस। वो प्यूबिस का पार्ट होता है। सेंट्रली दो प्यूबिस मींस दो हिप बोन के प्यूबिस फ्यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन प्यूबिक सिम्फाइसिस। और उसके बाजू में प्यूबिस, वो जो बोन आपको दिख रहा है उसको अगर पाल्पेट करोगे और लैटरली जाओगे तो एक छोटा सा ट्यूबरकल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज एन प्यूबिक ट्यूबरकल। ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जो एब्डोमेन और थाई को डिवाइड करते हैं। मींस ये दोनों स्ट्रक्चर जो है जिसके जस्ट अबव वी आर काउंटिंग द एब्डोमेन, और उसके नीचे वी आर काउंटिंग द थाई। क्योंकि जब हम बॉडी डिसेक्ट करते हैं, बेसिकली बॉडी को कट करते हैं, तो जो फैटी लेयर होते हैं मींस स्किन हमने निकाल दिया, फिर सुपरफिशियल फेशिया है। एब्डोमेन में दो सुपरफिशियल फेशिया होते हैं, एक मेम्ब्रेनस और एक फैटी लेयर। तो जो एब्डोमेन का फैट है उसी का लेयर थाई में कंटिन्यू होता है। ठीक है, मींस कोई ओबेस पर्सन रहा, उसका पेट भले ही हमें बहुत ज्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर विद द थाई, तो सिर्फ फैट ज्यादा होता है। लेकिन अगर हमने पूरा डिसेक्शन साथ में किया तो ये प्लेन होता है विद द एब्डोमेन जो फैट होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे ज्यादा फैट बॉडी में दिखेगा, हम जब बॉडी ये करते हैं, डिसेक्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा फैट पेट में और थाई में होता है। इसलिए जब एक्सरसाइज भी कोई जिम में वगैरह जाता है तो ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम किसी को फैट डिजोल्व करना है तो वो फोकस इस दोनों ही चीज पे करते हैं, यही पे सबसे ज्यादा फैट डिजोल्व होता है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम जहाँ पे आगे हम बैठे हैं, जहाँ पे हमको लैटरली एक पोर्शन फील होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन इलियक क्रेस्ट। दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिलेटेड विथ एन इलियम। जहाँ पे हम बैठे हैं वहां पे हमें एक बोन पाल्पेट होगा, दैट पोर्शन इज रिलेटेड विथ एन इस्चियम। और जस्ट अम्बिलिकस के नीचे जो बोनी पोर्शन हमें दिख रहा है दैट इज रिलेटेड विथ एन प्यूबिस। तो ये तीन पार्ट हिप बोन के। अब जैसे हर पार्ट के हमने बॉर्डर्स और सरफेसेस देखे, तो यहाँ पे भी सेम है। हर पार्ट में अलग अलग बॉर्डर्स है, अलग अलग सरफेसेस है। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करें विद द इलियम। दिस इज इलियम, दिस इज इस्चियम एंड द प्यूबिस। दिस इज द हिप बोन। उनके बोनों ने पोजीशन दी है कि इलियम ये सुपेरियरली होता है, दिस इज द हिप बोन। ठीक है, ये अगर हाथ में लिया तो हमें जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखते हैं पहले हम वो देख लेंगे। जो अपर फ्लैंक है, जो अपर मोस्ट पोर्शन है, वो आपको फ्लैंक जैसा दिखेगा, आला कहते हैं इसे। जो सबसे बड़ा दिखेगा ये इलियम है। ठीक है, देन नीचे का पोर्शन है, यहाँ पे एक छोटा सा हमें कॉन्केविटी दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज एन एसिटाबुलम। ये जो पोर्शन है यहाँ पे सबसे डीप कॉन्केविटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज एन एसिटाबुलम। इसी में हेड ऑफ फीमर अटैच होता है, फॉर्मिंग द हिप जॉइंट। ओके, मींस हिप जॉइंट के फॉर्मेशन में यहाँ पे फीमर अटैच हो रहा है, तो दिस इज द एसिटाबुलम अलोंग विद द हिप जॉइंट। उसके नीचे यहाँ पे एक गैप है, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑब्टुरेटर फोरामेन। ठीक है, ये इलियम हुआ, ये एसिटाबुलम हुआ, और ये जो गैप है दैट इज ऑब्टुरेटर फोरामेन। अभी अगर ये बोन को आप अच्छे से देखोगे ये पोर्शन में, तो आपको दिखेगा कि पीछे का पोर्शन है ये ठीक है एज कम्पेयर विद एंटीरियर पोर्शन। ठीक है, बेसिकली बोन हाथ रहा तो ये थोड़ा सा इजी जाता है समझना, पर आपको शायद ये दिख रहा होगा। ये जो पीछे का पोर्शन है ये वो ठीक है, क्योंकि हम इसमें बैठ रहे हैं। ठीक है, बैठते हैं इस कारण यहाँ पोर्शन प्रेशर नहीं आता। तो जो थीन पोर्शन है वो एंटीरियर में जाता है और उससे हम प्यूबिस कहते हैं, और पोस्टीरियर पोर्शन में दैट इज कॉल्ड एज एन इस्चियम। तो बेसिकली एनाटॉमिकल पोजीशन में इन्होंने ऐसा कहा है कि सुपीरियरली इलियम है, और एक पार्ट सुपीरियरली हो गया, फिर दो पार्ट इंफेरियरली है,
जो एक एंटीरियरली होता है, सो ये एंटीरो इंफीरियर दैट इज द प्यूबिस और पोस्टेरो इंफीरियर दैट इज द इस्चियम। मींस अ सिंपल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में उसने डिवाइड किया, एक अपेक्स है, एक एंटेरो इंफीरियर गया, एक पोस्टेरो इंफीरियर गया। तो जब बॉडी पे बोन पे भी हम ये करेंगे तो वहां पे आपको ये अच्छे से palpate होगा कि पोस्टेरियर सेगमेंट वो ठीक है, दैट इज इस्चियम। ओके, देन थ्री पार्ट्स आर conjoined the cup shape hollow acetabulum। ये पिक्चर में आपको ये दिखेगा, ये जो पोर्शन है नीचे वाला, दिस इज अ डीप कॉन्केविटी दैट इज कॉल्ड एज एन एसिटाबुलम। और ये एसिटाबुलम फॉर्म करते वक्त तीनों पार्ट यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये जैसा थ्योरेटिकली है वैसा नहीं है मार्किंग में। तो ये जो एसिटाबुलम होता है ये तीनों पार्ट से बनता है। जैसे हमने ऑसिफिकेशन यानी जो बोन डेवलप होते हैं, तो यहाँ पे अलग से एक ऑसिफिकेशन पॉइंट होता है जिससे तीनों पार्ट अलग अलग डेवलप होते हैं। इलियक क्रेस्ट में एक ऑसिफिकेशन पॉइंट होता है जहां से इलियम डेवलप होना स्टार्ट होता है। जैसे लॉन्ग बोन के ऑसिफिकेशन में ऐसा होता है, ऑसिफिकेशन मींस द फॉर्मेशन ऑफ द बोन जो इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है कि शाफ्ट में प्राइमरी सेंटर होते हैं और शाफ्ट बड़ा होते जाता है, फिर दो एंड फ्यूज होते हैं। पर यहाँ पे इरेगुलर बोन में हर एक पार्ट के लिए अलग अलग ऑसिफिकेशन सेंटर है। तो यहाँ पे एसिटाबुलम मींस ये जो डीप कॉन्केविटी है, ये वाली, ये कॉन्केविटी तीनों पार्ट से बन रही है, जो 2/5 इलियम से बनती है, 2/5 इस्चियम से बनती है और 1/5 प्यूबिस से बनती है। मींस उसमें उन्होंने 5 हिस्सों में उसको डिवाइड किया मार्किंग से, और 5 में से 2 पार्ट इलियम बना रहा है, 2 पार्ट इस्चियम बना रहा है और 1 पार्ट ही प्यूबिस बना रहा है। तो दिस इज द एसिटाबुलम। देन प्यूबिस एंड द इस्चियम आर सेपरेटेड बाय द लार्ज ओवल ओपनिंग कॉल्ड एज एन ऑब्टूरेटर फोरामेन। जो मैंने दिखाया यहाँ पे कि दिस इज प्यूबिस एंड दिस इज इस्चियम, मींस दिस इज प्यूबिस, दिस इज इस्चियम, और ये दोनों को डिवाइड कर रहा है ये ओपनिंग, और दिस इज ऑब्टूरेटर फोरामेन। बेसिकली इतनी बड़ी ओपनिंग किसी भी बोन में इसके पहले हमने नहीं देखी। एक दो तीन जगह पे छोटे से ग्रूव्स होते हैं, मींस एक जगह से दूसरी जगह पे पास होने के लिए। एक ही बोन है जिसमें ओपनिंग है। बहुत बार ये हमें लगता है कि वो टूटा हुआ होगा वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली ओपनिंग है और ये कवर्ड होता है। जैसे रेडियस और अल्ला दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड एज एन इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये ऑपरेटर फोरामेन है, इसको कवर्ड करती है, बॉडी में ओपन नहीं रहती, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज द ऑपरेटर मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर पास आउट होने के लिए प्रिवेंटिव होती है। देन है, दिस इज द इलियम इस्चियम प्यूबिस। ये ओसिलर सेगमेंट है दैट इज द सैक्रम, और उसके नीचे जो है दैट इज द कोक्लिक्स, और ये कंप्लीटली पेल्विक गर्डल फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेसर पेल्विस और ग्रेटर पेल्विस बेसिकली होता है। मींस ये जो पूरा ऊपर का पोर्शन है अगर हमने मार्क किया तो दैट इज द लेसर ग्रेटर पेल्विस, और ये जो नीचे की बाउंड्री है, ये जो राउंडेड सर्कल फॉर्म हुआ है, इसके इनर साइड में अगर कोई ऑर्गन हुआ तो दैट इज कॉल्ड एज एन लेसर पेल्विस। अभी ये पेल्विस भी मेल और फीमेल में डिफरेंट आते हैं ड्यू टू the adaptation or additional organ that is the uterus or the ovaries present over here, और डिलीवरी में भी थोड़े से चेंजेस लगते हैं। तो बेसिकली जो चेंजेस होते हैं इट्स एसोसिएटेड विद द हिप बोन ओनली। जैसे यहाँ पे ऑपरेटर फोरामेन है, उसका शेप मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, और इसका जो प्लेसमेंट होता है वो भी थोड़ा सा अलग होता है अलॉन्ग विद द कॉकिक्स, ताकि जब बर्थ के समय नॉर्मल डिलीवरी के समय वो एक्सटेंड हो पाए और नॉर्मली डिलीवरी हो पाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज द इलियम। अब यहाँ पे फिर से रिपीटेशन में उन्होंने वही दिया है कि ये ऊपर है, एसिटाबुलम का 2/4 पोर्शन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर नॉर्मली हमें देखना है दैट फर्स्ट वन द इलियक क्रेस्ट। ठीक है, ये इलियम में है। देन 3 borders and 3 surfaces. A lower end is a smaller and fused with the pubis। ये हमने देखा कि एसिटाबुलम फॉर्म करते हैं। तो व्हाट इज द इलियक क्रेस्ट? अभी सिर्फ इतना पोर्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, जो मेरे हाथ में आपको देख रहा है, दिस इज द कंप्लीट हिप बोन। ठीक है, ये कंप्लीट हिप बोन है। अभी जो हमें कंसीडर करना है वो इतना ही पोर्शन है, ये वाला। ठीक है, तो दिस इज द हिप बोन और द पोर्शन ऑफ द इलियम। ठीक है, तो इसमें 3 सरफेसेस और 3 बॉर्डर्स है। ठीक है, और सबसे बड़ा पोर्शन है दैट इज द इलियक क्रेस्ट। मींस अभी ये पोर्शन, ये बोन देखिए, इसके ऊपर ये जो फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज द इलियक क्रेस्ट। ठीक है, ये पोर्शन, ये कंप्लीट पोर्शन दैट इज द इलियक क्रेस्ट। अब ये हम बॉडी पे भी पाल्पेट कर सकते हैं।
एंटीरियर सुपीरियर स्पेन हम पाल्पेट करते हैं जहां पे एंटीरियरली एक प्रोमिनेंट रीज आपको मिलती है या प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हमें मिलता है, दैट इज द पोर्शन रिलेटेड विथ एन इलियाक क्रेस्ट, और जो एंटीरियरली और सुपीरियरली होता है, ठीक है। पोस्टेरियरली अगर ट्रेस करते गए तो कंप्लीट जो बोनी मार्किंग हमें ट्रेस होती है या लगती है, दैट इज कॉल्ड एज एन इलियाक क्रेस्ट, ठीक है। मींस इलियाक क्रेस्ट इज द अपरमोस्ट पोर्शन ऑफ द इलियम, ये कंप्लीट इलियम है और इसका ये जो पोर्शन है दैट इज द इलियाक क्रेस्ट, और एंटीरियर सुपीरियर स्पेन हमें पाल्पेट होती है, ठीक है। देन 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस, जस्ट वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। यहाँ पे देखिए, दिस इज द अला ऑफ द इलियम, ये जो ऊपर मार्जिन है सबसे ऊपर, दैट इज द इलियाक क्रेस्ट, ठीक है। ये पोस्टीरियरली है, ये एंटीरियरली है। तो ये ओरिजिनल बोन का पिक्चर मुझे मिला तो मैं ऐसा इसका डाला। पोस्टीरियर रीजन मुझे नेट पे मिला नहीं, ओरिजिनल पिक्चर तो वो नहीं डाला, तो ये ओरिजिनल बोन है। ऐसे कैसे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, ये एंटीरियर पोर्शन में होता है, पेल्विक कैविटी में, ये आप देख सकते हो। ये पोर्शन रफ है, ठीक है, जहाँ जैसे यहाँ पे मैंने रफ दिखाया सेम, और उसके बाजू वाला पोर्शन ये स्मूथ पोर्शन है और कॉन्केविटी है, ठीक है। मीन्स ये थोड़ा सा बाहर आता है, ये कॉन्केव आता है। सेम स्ट्रक्चर अगर आप इसको और देखोगे ध्यान से, तो ऊपर यहाँ पे एक ट्यूबरोसिटी है, उसके नीचे यहाँ पे एक ऑरिकुलर एरिया है, ठीक है। यहाँ पे सैक्रम अटैच होता है बेसिकली, ये रफ होता है ट्यूबरोसिटी, और यहाँ पे सैक्रम अटैच हो रहा है, और ये इन दोनों के बीच में एक मार्जिन है, दिस इज द मेडियल बॉर्डर, ठीक है। जब बॉर्डर के साथ हम इसको फिर से डिस्क्राइब करेंगे, फोटो आया इसलिए बताया। ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है जिसमें मेडियल बॉर्डर सेपरेट हुआ, ये स्मूथ है, ये थोड़ा सा रफ होता है। इसको अगर हमने पलटा दिया तो दिस इज द ग्लूटियल सरफेस, जो बाहर के साइड में है, ठीक है। ये कंप्लीटली स्मूथ है, ये पिक्चर में आपको दिखेगा, ठीक है। ये बाहर के साइड में है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ लाइनिंग्स होती है। यहाँ पे एक लाइनिंग दिख रही है, ये जो लाइनिंग है, यहाँ पे सिर्फ 3 लाइनिंग्स होती है, दैट इज कॉल्ड एज एन ग्लूटियल लाइंस। अब ग्लूटियल रीजन है, वहाँ पे सबसे बड़ी मसल्स प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज एन ग्लूटेस मीडियस, मैक्सिमस एंड मिनिमस। ग्लूटियल रीजन जहाँ पे हम जो फ्लेशी बल्क दिखते हैं, दैट इज द ग्लूटियल मसल्स, ठीक है। तो ये समवॉट ऐसे दिखता है इलियम, दिस इज द इलियाक क्रेस्ट। जस्ट गो वन बाय वन, फर्स्ट वन द इलियाक क्रेस्ट। अभी ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलियाक क्रेस्ट सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द इलियाक क्रेस्ट, मींस एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन हमने पाल्पेट किया, पीछे तक हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, जहां पे सबसे ऊपर हमें लैंडमार्क हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा, दैट इज एट द लेवल ऑफ L3 L4, मींस लंबर 3 और लंबर 2 के लेवल पे होता है। पीछे में पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन होता है, वो भी हम पाल्पेट कर सकते हैं। कहाँ पे, तो अगर आपने कभी देखा होगा हाथ लगा के पाल्पेट करके, तो पोस्टीरियरली हमें एक डिंपल मिलता है, मींस वहां पे एक छोटा सा डिप्रेशन है, उसके 4 सेंटीमीटर बाजू में S2 मींस सैक्रल 2 का स्पाइन होता है, वहां पे हम पाल्पेट कर सकते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। मींस ये कंप्लीट इलियाक क्रेस्ट है, ये कंप्लीट इलियाक क्रेस्ट है, ठीक है। एंटीरियरली एंटीरियरली ये जो पोर्शन है, जहां पे पॉइंटेड पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एज एन एंटेरो सुपीरियर इलियाक स्पाइन। इसको हम पीछे गए तो ये मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट है, दैट इज रिलेटेड विद L2। देन यहाँ पे पीछे गए, दैट इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, मींस anterior superior iliac spine, posterior superior iliac spine, this is the iliac crest, highest point of the iliac crest. Now another important landmark related with this, आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखो, ये एंटेरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन है, यहाँ से लगभग 5 सेंटीमीटर पीछे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये थिकनेस ज्यादा दिख रही है, दिस इज द ट्यूबरकल ऑफ इलियाक क्रेस्ट। ये एंटेरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन हो गया, उसके थोड़ा सा पीछे है, ये लैटरली एक ट्यूबरकल है, दैट इज द ट्यूबरकल ऑफ इलियाक क्रेस्ट। यहाँ पे जब हमने एब्डोमेन के पार्ट देखे थे लैंडमार्क के वक्त, कि हम एब्डोमेन के 9 पार्ट्स करते हैं फॉर द betterment of understanding of the organs which are just present in the abdomen, ठीक है। तो वहां पे 2 वर्टिकल लाइंस और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। तो वर्टिकल लाइंस दे आर जस्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, मींस क्लेविकल के मिड से सीधा वर्टिकल लाइन नीचे तक आती है, दैट इज रिलेटेड विद एन प्यूबिक ट्यूबरकल, सॉरी प्यूबिक इंग्वानल लिगामेंट, मींस यहाँ पे मिड क्लेविकल टू द मिड इंग्वानल। और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हमने देखी थी ऊपर 9 कोस्टल कार्टिलेज एंटीरियरली, और एंटीरियरली लोअर जो लाइन थी, दैट इज कॉल्ड एज एन ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। तो वो ट्यूबरकल जो है वो ये है, ये बॉडी में इमेजिनरी है एंटीरियर,
ये एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन हम बॉडी में पाल्पेट कर सकते हैं। तो मैं इमेजिनरी लाइन में 5 सेंटीमीटर पीछे गए, बॉडी पे मार्क किया, दूसरे साइड का हिप बोन वैसे बॉडी पे मार्क किया और लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। दैट इज द ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन, मींस ट्रांसपाइलोरिक और ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन। ट्रांसट्यूबरकुलर के नीचे जो है दैट इज द हाइपोगैस्ट्रियम, लेफ्ट लंबर और लेफ्ट राइट लंबर, ये जो रीजन्स होते हैं ये हमने लैंडमार्क्स के वक्त देखे थे। तो दैट इज द इलियाक क्रेस्ट। इसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और एक है, दैट इज द बोन ग्राफ्टिंग। अगर कोई बोन हमें चाहिए या बोन के स्ट्रेसेस हमें चाहिए तो सबसे असेसेबल बोन यही है। क्यूबिला हम पाल्पेट नहीं कर पाते, ये हम पाल्पेट कर पाते हैं। इसलिए अगर घर में कभी किसी का फ्रैक्चर हुआ होगा तो आपने एक देखा होगा कि उसके कमर में भी इंसिजन होता है, क्योंकि यहाँ से ये पोर्शन बहुत ठीक है, सिर्फ मसल अटैचमेंट के लिए ये पोर्शन है। यहाँ से हम छोटे छोटे ग्राफ्ट बोन के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बार आपने ये मे भी अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा जिनको बोन ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ी है, तो ये आपने घर पे भी देखा होगा कि यहाँ पे इंसिजन है जबकि फ्रैक्चर हाथ में रहता है। ठीक है, तो वो बोन ग्राफ्ट के लिए निकालते हैं। देन एंड्स, ये एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स में ये दोनों मैंने बताए, और इलियाक क्रेस्ट भी मैंने बताया। देन नेक्स्ट दैट इज बॉर्डर of the ilium. 3 borders are there and 3 surfaces are there. Abhi starting with the first one, that is anterosuperior iliac spine. This is anterosuperior iliac spine, this is posterior superior iliac spine. ठीक है, तो anterior border it just start with anterosuperior iliac spine, उसके बाद ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद यहाँ पे acetabulum में खत्म हो गया। This is the acetabulum. ठीक है, बोन दिख रहा है सभी को अच्छे से? Yes. Yes, yes. Dr. Yeah, Amol, yes. Yeah. yeah. तो दिस इज एंटेरोसुपीरियर इलियाक स्पाइन। ठीक है, अब एंटीरियरली प्रेजेंट है, तो ये जो लाइन, ये जो बॉर्डर नीचे आ रही है, ठीक है, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। अब यहाँ पे एक स्पाइन है और यहाँ पे एक स्पाइन है, तो दिस इज एंटेरो, एंटीरियरली है और सुपेरियरली है इलियाक स्पाइन है। ये नीचे एंटेरो इंफीरियर इलियाक स्पाइन, ये सुपेरियर इलियाक स्पाइन, ये इंफीरियर इलियाक स्पाइन, और ये एंड हो गया एट द एसिटाबुलम। ठीक है, तो ये एंटीरियर बॉर्डर होगी। Then posterior border, it just start with the posterior surface, posterior end. This is posterior border. Start with an posterior superior iliac spine. थोड़ा सा नीचे आया, एक 4 से 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक और स्पाइन है, that is posterior inferior iliac spine. Then वो नीचे गया और फॉर्म किया एक नॉच को, ये जो सर्कुलर नॉच है that is called as a greater sciatic notch. Means this is posterior superior iliac spine, posterior inferior iliac spine, then having a notch called as a greater sciatic notch. ठीक है, ग्रेटर सियाटिक नॉच एज पर द नेम, जो सियाटिक नर्व होती है, जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, वो यहाँ से पास होती है। एक और मसल है यहाँ पे पायरिफॉर्मिस करके, यहाँ पे फाइबर्स होते हैं पोस्टीरियर इंफीरियर स्पाइन पे, वहां से वो पास होती है। तो जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं, एंटेरो सुपीरियर इलियाक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, सॉरी एंटेरो सुपीरियर इलियाक स्पाइन, एंटेरो इंफीरियर इलियाक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन और सियाटिक नॉच। ठीक है, तो ये हो गए 2 बॉर्डर्स। आगे के तरफ एक बॉर्डर है, ये रफ एरिया, उसके बाजू में स्मूथ एरिया है, उसके बीच में ये मिडल में एक लाइनिंग है, दैट इज कॉल्ड एज एन मिडियल बॉर्डर। अभी यहाँ पे भी मिडियल बॉर्डर 2 सरफेस को डिवाइड करती है, सरफेसेस हम आगे देखेंगे। तो दिस इज द मिडियल बॉर्डर, और ये नीचे तक आती है, और यहाँ पे नीचे इलियोप्यूबिक इमिनेंस होता है। मींस ये इलियम का पोर्शन है, आगे का पोर्शन प्यूबिस का है। ठीक है, अब ये इलियम है, ये प्यूबिस है, इसके बीच में यहाँ पे एक इमिनेंस है। इमिनेंस मींस सेम एलिवेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो मीडियल बॉर्डर ये एलिवेशन तक आती है, यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है शायद, ये इमिनेंस तक यहाँ पे एक बॉर्डर है और यहाँ पे एक बॉर्डर है। ठीक है, तो ये कंप्लीट मीडियल बॉर्डर है। एट द स्टार्टिंग मीडियल बॉर्डर 2 सरफेसेस को डिवाइड करती है, दिस इज साइक्रोटिब्यूलर सरफेस, दिस इज द इलियाक फोसा, और इंफीरियरली दिस इज कंप्लीट पेल्विक रीजन। ठीक है, अब ये एंटीरियरली प्रेजेंट है, तो ये पोर्शन पूरा पेल्विक रीजन में आता है। मींस 3 बॉर्डर्स, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, सेट ग्रेटर सियाटिक नॉच, और दिस इज अ medial border. तो 3 borders are there, anterior, posterior and the medial. Then 3 surfaces. अब 3 surfaces मैंने पहले बता दिए कि यहाँ पे 2 surfaces है इंटरनली, और पोस्टीरियरली एक ही सरफेस है, कंप्लीट सरफेस ये जो है दैट इज द ग्लूटेयल सरफेस, एंड इट हैविंग इंप्रेशंस कॉल्ड एज एन पोस्टीरियर ग्लूटेयल लाइन, एंटीरियर ग्लूटेयल लाइन एंड द इंफीरियर ग्लूटेयल लाइन। ठीक है,
अब ये तीनों लाइन बेसिकली इल डिफाइंड होती है, हम उसको सिर्फ इमेजिन करके देख सकते हैं। और तीनों लाइन का फंक्शनिंग बोन पे इतना ही है कि तीन मसल्स दैट इज ग्लूटेस मैक्सिमस, मीडियस एंड द मिनिमस, ठीक है, इनका सेपरेशन है। इनके फाइबर एक जगह पे एंड हो रहे, दूसरे फाइबर स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा गैप होता है, तो वो सिर्फ अटैचमेंट के लिए एक अलग सा ग्रूव या अलग से स्ट्रक्चर्स वहां पे प्रेजेंट है, और दैट इज कॉल्ड एज एन ग्लूटेल लाइन। दे आर हैविंग थ्री, पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड द inferior. Then surface, this one, that is the sacropelvic surface. As per the name, it is related with an sacrum and the pelvic region. तो यहाँ पे बेसिकली ये जो रफ एरिया है that is called as a sacropelvic surface. ये medial border है। अब medial border के पीछे iliac surface है that is iliac fossa, और उसके आगे and sorry ये पोस्टीरियरली आता है, मींस मेडियल सरफेस के पोस्टीरियरली सैक्रोपेल्विक सरफेस है, तो वो ऊपर रफ है, नीचे स्मूथ होता है। तो नीचे जो स्मूथ होता है विद इन द पेल्विक होता है, तो इसमें भी तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इलियक ट्यूबरोसिटी, अगर इसको हम फोकस करेंगे तो ये जो पोर्शन है ये सबसे बड़ा है, दैट इज द इलियक ट्यूबरोसिटी। उसके नीचे यहाँ पे सैक्रम अटैच होता है, तो ये थोड़ा सा ऊपर आता है, दैट इज द ऑरिकुलर एरिया, और उसके नीचे ये प्लेन एरिया है, दैट इज द पेल्विक एरिया, ठीक है, मींस वो पेल्विक इनर साइड में आया। और लास्ट सरफेस जो बचा ये दैट इज द इलियक फोसा। यहाँ पे कॉन्केविटी होती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द इलियाकस, ये मसल का नाम है, और मसल के नाम से ही उसको इलियक फोसा कहा गया है। तो थ्री बॉर्डर, थ्री सरफेसेस रिलेटेड विथ एन इलियम, देन द अटैचमेंट्स। अब अटैचमेंट्स में सिर्फ फिगर के हिसाब से हम जाते हैं। ये सबसे इजी दैट इज द ग्लूटियर सरफेस, यहाँ पे ये अटैचमेंट आप देख सकते हो। ग्लूटियस मैक्सिमस, अब यहाँ पे बेसिकली डायग्राम हम जब देखते हैं तो मैक्सिमस एज पर द नेम सबसे बड़ी होनी चाहिए, पर यहाँ पे आपको सबसे छोटी है, दैट इज मैक्सिमस। उसके बाजू में जो है दैट इज मीडियस, और यहाँ पे सबसे बड़ी मिनिमस दिख रही है। तो बेसिकली ये अटैचमेंट के हिसाब से यहाँ पे डायग्राम में लेबलिंग हुआ है, पर बॉडी में जो प्लेसमेंट होती है वो मैक्सिमस सबसे बड़ी है, मींस सबसे बड़ी मसल दैट इज द मैक्सिमस, पर उसके अटैचमेंट बस छोटा अटैचमेंट्स इससे रिलेटेड है, बाकी सैक्रम और बाकी स्ट्रक्चर से भी उसका अटैचमेंट होता है, पर सबसे बड़ी मसल दैट इज मैक्सिमस। और यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है, ठीक है, दिस इज पोस्टीरियर पोर्शन, दिस इज एंटीरियर पोर्शन। जहाँ पे सार्टोरियस दिख रहा है ये एंटीरियरली है और ये पोस्टीरियरली है। जब हम बोन में भी देखा तो ये जो बड़ा पोर्शन है दैट इज रिलेटेड विथ पोस्टीरियर, और ये जो छोटा पोर्शन जहाँ पे टिप पॉइंट है दैट इज एंटीरियर पोर्शन, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर पोर्शन हो गया। तो यहाँ पे सबसे पोस्टीरियरली मैक्सिमस है, उसके बाजू में मीडियस है, उसके बाजू में मिनिमस है, ठीक है। तो ये तीनों, तो ये जो है इन दोनों के बीच में ये पोस्टीरियर लाइन है, ये पोस्टीरियर ग्लूटेल लाइन, दिस इज एंटीरियर ग्लूटेल लाइन, और दिस इज इंफीरियर ग्लूटेल लाइन, ठीक है। उसके ऊपर ये इलियक क्रेस्ट है। यहाँ पे और एक मसल है जो मैंने बोला कि पोस्टीरियर इंफीरियर स्पाइन में एक छोटी सी मसल होती है दैट इज द पायरिफॉर्मिस। उसके नीचे इंफीरियर ग्लूटेल लाइन के नीचे यहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनिस के दो हेड होते हैं। रेक्टस एब्डोमिनिस मींस ये की मसल है, एब्डोमिन से रिलेटेड, रेक्टस मींस स्ट्रेट, ठीक है। उसके दो हेड होते हैं दैट इज रिफ्लेक्टेड एंड स्ट्रेट हेड। इलियक क्रेस्ट अगर हमने सुपीरियरली देखा तो समवॉट ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर ऊपर से हमने इसको देखा तो ये जो पिक्चर दिख रहा है ये इलियक क्रेस्ट का पिक्चर है, और यहाँ पे इतने सारे मसल्स होती है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट दैट इज द सार्टोरियस। ये पैर की मसल है, सबसे बड़ी मसल है, सबसे लंबी मसल है बॉडी में, जो सबसे लंबी मसल होती है दैट इज द सार्टोरियस। देन उसके नीचे टेंसर फैशिया लैटा, ये थाई से रिलेटेड है। उसके बाजू में तीन मसल्स आपको दिख रही है, एक ही मसल ब्लू कलर में दैट इज द एक्सटर्नल ऑब्लिक, बीच में एक है दैट इज इंटरनल ऑब्लिक, देन ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। अभी ये इलियक क्रेस्ट हमने ऊपर से देख रहा है, ये बॉडी में ऐसा प्रेजेंट है। तो ये जो पूरी मसल्स है ये एब्डोमेन से रिलेटेड आती है, मिडल वाली। एक्सटर्नल ऑब्लिक सबसे बाहर की मसल है एब्डोमेन की, उसके नीचे इंटरनल ऑब्लिक होती है, और उसके नीचे ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस होती है। अभी एक्सटर्नल ऑब्लिक एक्सटर्नली है ऑब्लिकली फाइबर से, इसलिए उन्होंने दिया यहाँ पे एब्डोमिनिस नहीं है, पर दे आर द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन। देन उसके पीछे गए, मींस मिडल में एब्डोमेन था, उसके पीछे गए तो हमें बैक रीजन आएगा। तो ब्लैक की दो मसल्स दैट इज लैटिसिमस डॉर्सी एंड द क्वाड्रेटस लंबोरम, दे आर आल्सो प्रेजेंट विथ एन अटैचमेंट ऑफ एन इलियक क्रेस्ट। और सबसे लास्ट में गए हम तो नियर द वर्टिब्रल कॉलम वी हैविंग इरेक्टर स्पाइनी एंड ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमस
बहुत जगह पे आपको इसके अटैचमेंट दिखेंगे। तो एक हमने इलियल ग्लूटेयल सरफेस में देखा और लास्ट में हम इसको इलियाक क्रेस्ट के तरफ भी देख रहे होते हैं। इरेक्टर स्पाइनी मींस स्पाइनी, इट इज रिलेटेड विद स्पाइन। इरेक्टर मींस वो इरेक्ट करती है स्पाइन को, और उसका अटैचमेंट भी सबसे लास्ट पोर्शन में इलियाक क्रेस्ट में है। तो बेसिकली अगर ओरिजिन और इंसर्शन की बात देखोगे तो हर जगह पे यहाँ पे सिर्फ रेड कलर ही दिख रहा है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक और ये पोर्शन में एक सोयास माइनर, ये दोनों का ही इंसर्शन है। बाकी ओरिजिन है इस बोन पे, ठीक है, यही से स्टार्ट होती है। और नंबर ऑफ मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये हो गए एंड पोस्टेरियर रीजन के। फिर एंटेरियर रीजन में देखिए यहाँ पे जो एक इलियाक फोसा था, मींस एक ही सरफेस था, कंप्लीट सरफेस, वो कंप्लीट एक ही मसल होती है, दैट इज इलियाकस। उसके ऊपर है वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है, वो इलियाक क्रेस्ट से रिलेटेड है। देन एंटेरो सुपीरियर इलियाक स्पाइन, वहां पे सार्टोरियस होती है। एंटेरो इंफीरियर इलियाक स्पाइन, यहाँ पे रेक्टस फिमोरिस होती है। अब सार्टोरियस जो है ये बॉडी में सबसे बड़ी मसल इसलिए है, इट स्टार्ट्स विथ एन एंटेरो सुपीरियर इलियाक स्पाइन। देन ये मसल है जो क्रॉस होती है एंटायर लेग में, और वो इंसर्ट होती है एट द मेडियल एस्पेक्ट ऑफ द टिबिया। थाई पे कहीं पे भी नहीं जाती, मींस उसकी लेंथ है अप टू द स्टार्टिंग ऑफ एंटीरियर इलियाक स्पाइन अप टू द टिबिया, मींस कंप्लीट थाई का लेंथ और थोड़ा सा पोर्शन हिप पोर्शन और थोड़ा सा टिबिया का पोर्शन। तो ये सबसे बड़ी मसल बॉडी में होती है। इसको टेलर्स मसल भी बोलते हैं। अगर हम कभी टेलर्स देखे होंगे शायद, तो पुराने जमाने में ऐसे होते थे, पाव से वो मशीन चलाते थे, ठीक है। अभी तो इलेक्ट्रिक की आ गई, हाथ में भी होता है, पैर में भी इलेक्ट्रिक का ये होता है, लेकिन जो पुराने जमाने में होते थे वो पैर से वो मशीन चलाते थे, तो उसमें ये मसल प्रोमिनेंट दिखती थी, जो बॉडी बिल्डिंग में भी होती है। तो ये ट्रांसवर्सली मसल्स पूरी एंटायर लेंथ में दिखती है, दैट इज द सार्टोरियस, ठीक है। तो दीज आर द अटैचमेंट्स रिलेटेड विथ एन इलियम। सेम मसल्स है fascia lata। हाँ, एक दो स्ट्रक्चर छूट गए जो आउटरलैप ऑफ इलियाक क्रेस्ट पे है। फर्स्ट वन द fascia lata एंड fascia टेंसर fascia lati, दोनों सेम नेम है, दैट इज fascia lata और टेंसर fascia lati। एक जो है fascia lata, ये fascia है ना कि मसल, और टेंसर fascia lati सेम नेम है बट इट इज अ मसल, ठीक है। ये भी नाम से ही हम देख सकते हैं। टेंसर मींस वो टेंस करने का काम करती है थाई को। ये सबसे लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में प्रेजेंट होती है। जब हम थाई के मसल्स देखेंगे वन बाय वन, तब ये मसल मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा। तो ये दो स्ट्रक्चर टेंसर और टेंसर fascia lati, ये उसी से रिलेटेड है। देन ट्रांसवर्स, ये बाकी के हमने पूरे देखे। और बेसिकली जब मैंने पीपीटी बनाई, ये शेयर भी की थी, यहाँ पे बहुत सारे लिगामेंट्स हैं रिलेटेड विथ एन सैक्रम एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट में और एंटीरियर एस्पेक्ट में। और अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट एज सच हम फिर से जो बड़े जॉइंट्स है उसमें पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिगामेंट्स पूरे निकाल दिए हैं, क्योंकि वैसे भी अटैचमेंट्स याद नहीं रहेंगे, सिर्फ मसल्स और नाम हमें याद रखने हैं। तो वो वहीं पे जो इंपॉर्टेंट लिगामेंट है वो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मसल्स के नाम रखे हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द इलियम। द नेक्स्ट पोर्शन, वी हैव अनदर 11 मिनट्स, तो हम प्यूबिस खत्म कर सकते हैं। तो हम प्यूबिस ले लेंगे, फिर इस्चियम लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इसको शॉर्ट में बॉडी और पार्ट्स रिवाइज करके फिर इस्चियम को कंटिन्यू करेंगे। तो प्यूबिस, अभी जो पोर्शन हमने देखा ये इलियम था एंटीरियर, ये पोर्शन जो है ये प्यूबिस है, ठीक है। इतना ही ट्रायंगुलर पोर्शन देखिए। अभी इसको मैंने हॉरिजॉन्टल पकड़ा इसलिए ट्रायंगुलर अच्छे से दिख रहा है। बेसिकली ये बॉडी में ऐसा होता है, ठीक है। अब ऐसा होने के कारण आप यहाँ पे प्रॉपरली देख पाओगे कि एंटीरियरली एक पोर्शन है, मींस ये पोर्शन, एंटीरियरली ये पोर्शन एक है, एक ये लाइनिंग ऊपर जा रही है और एक लाइनिंग नीचे जा रही है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इसको बॉडी कहते हैं। ये ऊपर का जो पोर्शन है इसको सुपेरियर रैमस कहते हैं, और ये जो इंफीरियर पोर्शन है इसको इंफीरियर रैमस कहते हैं, ठीक है। इतना ही ट्रायंगुलर पोर्शन है जिसको हम प्यूबिस कहते हैं। दिस इज बॉडी, दिस इज सुपीरियर रैमस, दिस इज इंफीरियर रैमस। अगर मैंने हाथ निकाल दिया तो इंफीरियर रैमस की तरफ देखिए, इंफीरियर रैमस इस्चियम की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये पोर्शन प्यूबिस का हो गया और ये इस्चियम की तरफ जा रहा है। जो रैम प्यूबिस का रैमस और इस्चियम का रैमस ये फ्यूज होता है, ठीक है। तो इसे कंबाइनली एक नाम दिया गया है, दैट इज इस्चियोप्यूबिक रैमाई, ठीक है।
दिस इज सुपीरियर रामस और दिस इज इस्चियोप्यूबिक रामा, ठीक है। बेसिकली इसके अटैचमेंट और ये दोनों साइड में होते हैं। अब ये अटैच होने के कारण कहाँ तक प्यूबिस है और कहाँ तक इस्चियम है, ये भी हमें एनाटॉमिकली फाइंड आउट अगर करना रहा तो सिंपल है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस्चियम ठीक है एज कंपेयर्ड विद द प्यूबिस, तो इसको हम अगर स्ट्रेटली पाल्पेट करते हुए जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहां तक थिकनेस हमें दिखाई देंगी या पाल्पेट होंगी, उसके बाद हमें थिन दिखाई देगा। तो जो पोर्शन थिन रिलेटेड है दैट इज रिलेटेड ऑफ इंफीरियर रामस ऑफ द प्यूबिस, और जो रामस इस्चियम का होता है वो थिक होता है, ठीक है। तो दिस इज द प्यूबिस बॉडी, सुपीरियर रामा और इंफीरियर रामा। और यहाँ पे अगेन बॉडी में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोमिनेंट, दैट इज प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक ट्यूबरकल। ट्यूबरकल बेसिकली बॉडी पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अम्बिलिकस से नीचे आइए स्ट्रेट, बोनी प्रोमिनेंस जहां पे मिलेगा वहां पे एट द मिडल दैट इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। फिर थोड़ा सा लैटरली अगर बॉडी पे गए तो एक प्रोमिनेंट ट्यूबरकल हमें मिलेगा दैट इज द प्यूबिक ट्यूबरकल, तो वो प्यूबिस से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली ये जो पोर्शन है दिस इज द बॉडी, ठीक है। ये जो पोर्शन है दिस इज द मीडियल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस, ठीक है। इसके साथ दूसरा प्यूबिक बोन अटैच होता है। तो ये सरफेस से सबसे ऊपर हम गए, ठीक है। ऊपर जाने के बाद उसको अगर ट्रेस किया तो ये जो हुआ ऊपर का पोर्शन जो टिप है प्यूबिक सिम्फाइसिस का या सिम्फाइसियल सरफेस का, दिस इज कॉल्ड एज ना प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। और इसको अगर मैंने थोड़ा सा तिरछा किया तो आपको ये लाइनिंग दिखेंगी जो ये ट्यूबरकल की तरफ जा रही है। ये प्यूबिक सिम्फाइसियल सरफेस का सबसे टिप का पोर्शन, इसको हम थोड़ा सा लेटरली गए तो यहाँ पे एक ट्यूबरकल है, ठीक है। दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल। और ये जो मींस ये टिप से ट्यूबर तक जो जा रही है दैट इज कॉल्ड एज प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है। जो हमें पाल्पेट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, हम अम्बिलिकस के नीचे स्ट्रेट गए तो यहाँ तक हम पहुंचेंगे। जो बोन हमें वहां पे पाल्पेट होगा दैट इज प्यूबिक क्रेस्ट, और लैटरली जहां पे बोन एंड होता है दैट इज प्यूबिक ट्यूबरकल। तो ये प्यूबिक क्रेस्ट है दैट इज प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। और इसके तीन सरफेसेस बॉडी के, दिस इज मेडियल सरफेस और ऑल्सो कॉल्ड एज एन सिम्फाइजियल सरफेस, क्योंकि ये दूसरे हिप बोन के साथ फ्यूज होती है। जो पोर्शन एंटीरियरली आता है दैट इज द एंटीरियर सरफेस, और जो पोर्शन पोस्टीरियरली आता है विद इन द पेल्विक कैविटी दैट इज कॉल्ड एज एन पेल्विक सरफेस। मींस यहाँ पे एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड द सिम्फाइजियल सरफेस। तो दिस इज अबाउट द बॉडी ऑफ द प्यूबिस, ओके। देन द सुपीरियर रामा। अभी हमने प्यूबिक क्रेस्ट देखी, दिस इज प्यूबिक क्रेस्ट और ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, ठीक है। अभी इतना ही पोर्शन हमें फोकस करना है। तो आपको ये दिखेगा कि ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, वहां से एक लाइन यहाँ पे निकल रही है, ठीक है। तो दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। अभी ये एंटीरियर देखिए, ये प्यूबिक ट्यूबरकल था, इससे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे निकली, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे ये पोर्शन, ठीक है, ये प्यूबिक क्रेस्ट है, इसके स्ट्रेट गए तो ये एंटीरियर बॉर्डर होगी और ये एसिटाबुलम में जा रही है। अगर मैंने पीछे किया तो आपको दिखेगा दिस इज ट्यूबरकल और ये गया एसिटाबुलम तक, ठीक है। दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। ये प्यूबिक ट्यूबरकल और ये एसिटाबुलम तक गया, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर। अभी इसके ऊपर एक लाइन है दैट इज सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रामा, ये रामस है, ठीक है। इतना पोर्शन जो है रामस है, तो ये जो है ये सुपीरियर रामस है। और ये जो है नीचे वाला, ठीक है, बेसिकली ये साइड में अच्छा दिखता है इंफीरियर रामस, ये, ठीक है। ये सुपीरियर रामस हो गया। अब ये साइड में एंटीरियर नहीं दिखता है, तो ये सुपीरियर रामस हो गया। और ये जो है ये जो पोर्शन है ना, सॉरी इंफीरियर बॉर्डर, मींस यहाँ पे तीन बॉर्डर्स है। फर्स्ट वन प्यूबिक ट्यूबरकल को आइडेंटिफाई किया जिसको हमने ट्रेस किया एसिटाबुलम तक, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर। उसके ऊपर सुपीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियरली हमें एक प्रोमिनेंट बॉर्डर सुपीरियर के नीचे दिखेंगे, दिस इज इंफीरियर बॉर्डर। So these are the three borders related with an superior rami. Then three surfaces, ठीक है। अब surfaces यहाँ पे उनके अटैचमेंट के हिसाब से दिया है। तो पेक्टिनियल सरफेस, उसको फिर से बॉर्डर को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये जो सरफेस है ये एंटीरियर बॉर्डर है,
एंटीरियर बॉर्डर को ऑब्टुरेटर क्रेस्ट बोला गया है। ये जो पोर्शन है एंटीरियर बॉर्डर उसको ऑब्टुरेटर क्रेस्ट बोला है। सुपीरियर बॉर्डर को पेक्टिनियल लाइन बोला है। ठीक है, तो वो उनके अटैचमेंट के हिसाब से। तो पेक्टिनियल लाइन के नीचे जो एरिया है, अब ये बॉर्डर हो गई थी, ठीक है, ये एंटीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर बॉर्डर, इन दोनों के बीच में ये सुपीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर, इन दोनों के बीच में ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज एन पेक्टिनियल सरफेस। ठीक है, ये पोर्शन जहाँ पे मेरा फिंगर है ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये बोन है। ठीक है, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर। हमने उसको टिल्ट किया, दिस इज पेक्टिनियल सरफेस। ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्शन है, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर, दिस इज इंफीरियर बॉर्डर, ये दोनों के बीच में ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज एन पेल्विक सरफेस। ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर इंफीरियर बॉर्डर के बीच में पेल्विक सरफेस। और एक एंटीरियर और इंफीरियर, एंटीरियर बॉर्डर एंटीरियरली हमें दिख रही है, लेकिन यहाँ पे हमें इंफीरियर बॉर्डर पोस्टीरियरली दिखती है, पर ये दोनों के बीच में ये जो सरफेस है दैट इज कॉल्ड एज एन ऑब्टुरेटर सरफेस। यहाँ पे ऑब्टुरेटर मसल होती है। और अगर ये बोन आप अच्छे से देखोगे, गुरु देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा नॉच आपको दिखेगा जो पोस्टीरियर टू एंटीरियर पास होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑब्टुरेटर ग्रूव। तो ये तीन स्ट्रक्चर दैट इज सरफेसेस, थ्री बॉर्डर्स, बेसिकली वो छोटे हैं बॉर्डर और सरफेसेस आइडेंटिफाई थोड़ा सा करना डिफिकल्ट होता है। तो तीन सरफेस तीन बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर रामाई को और प्यूबिस को, बॉडी, प्यूबिक क्रेस्ट और तीन सरफेसेस और प्यूबिक ट्यूबरकल, इतना रिलेशन में दैट इज रिलेटेड विथ प्यूबिस। ठीक है, बेसिकली हिप बोन एक ही, इसमें तीन पार्ट और उसके बाद दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एसिटाबुलर, ऑब्टुरेटर, फोरामेन, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं शॉर्ट में 10 मिनट में ये बोन्स के पार्ट इलियम और प्यूबिस के फिर से रिपीट करके फिर इस्चियम की तरफ बढ़ के फिर एसिटाबुलम और ऑब्टुरेटर, फोरामेन कवर करूंगा, यानी थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, नाम फिर से सुनाए आ जाएंगे। और उसके बाद हम फीमर स्टार्ट करेंगे। माइट भी ऐसा हो सकता है कि पूरा लेक्चर एक फीमर को लग सकता है 1.5 घंटे का, क्योंकि फीमर सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है बॉडी में। ठीक है, सिर्फ शाफ्ट के ही तीन जगह पे तीन अलग अलग बॉर्डर और अलग अलग सरफेसेस है उसके प्लेस, उसके शेप के हिसाब से। तो नेक्स्ट लेक्चर में अगर कंप्लीट हुआ तो मैं आगे की भी पीपीटी रेडी रखूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2 ही हो पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, forearm muscles, hand muscles and the 2 parts of the hip bone. Thank you. Very interesting, Dr. Amol. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks. Okay, Dr. साहब, जी थैंक यू वेरी मच। और Thank you, sir. हाँ, तो अपन शायद 1 अगस्त को फिर मुलाकात करेंगे। हाँ, sir.